सभी को नमस्ते सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार. I hope all members and their family are well during this COVID-19. And the today topic is the impact of COVID on this audit of financial statement, especially as per standard on auditings. This topic actually deliberately was taken because audit period will start recently, and we have to done the audit of the financial statement for the year 1920. But during this period, we have to face many challenges because of this COVID. Many practical problems will come, and how to handle these problems and to resolve the challenges faced by us. We have two very experienced, eminent, and knowledgeable speaker with us. One is your own study circle member, your own CA Pramod Jain ji, Central Council member, and another one is CA Gopal ji Agrawal ji, very experienced and eminent speaker on the topic. सर गोपाल जी आपकी वीडियो नहीं आ रही है. आपकी तरफ से बंद है सर, एडमिन की ओर से, एडमिन ने बंद कर रखा है. हाँ जी विनीत जी, होस्ट ने बंद किया हुआ है. सर अलाउड कर रखा है मैंने इसे. आप एक बार ट्राई करिए, दोबारा ट्राई करिए सर. अलाउड है सर, यहाँ से देखो हाँ, सर आगे करा. हाँ अब आ गया. नमस्कार सर. नमस्कार सर, नमस्कार. Actually, Gopal ji has come first time in your study circle meeting. Yes, yes. So it is my duty to give the introduction of Gopal sir. Although the profile is very large, but due to some limitation of time, I am just briefly introduce sir to your study circle. Gopal ji Agrawal is a senior partner of Gopal ji Agrawal and Company, Noida. Besides CA, he is a law graduate, DISA qualified, and sir has also done his IFRS course from ICI. Sir is an expert in IFRS, Ind AS, accounting standard, and standard on auditing. Sir has also addressed more than 300 seminar, teleconferences, webcast in the last 8 years. He is also a member of Financial Reporting Review Board of ICI, special invitee to Accounting Standard Board ICI, peer review board. Sir has also written various articles for NIRC newsletters and various websites. Sir has also given the Ind AS training to the officer of CAG, SBI, and various industries. And last but not the least, one more thing I want to about the sir. The sir is spiritually connected to the ISKCON and yoga. Sir is an instructor to the Bharatiya Yoga Sansthan, New Delhi. I welcome you, sir, in your study circle. And without taking much time, I straightway request Gopal ji to please start his deliberation on the today topic. Gopal ji, please, sir. Over to Gopal ji. Thank you, Rakesh ji. Thank you, sir. It is really a privilege for me to be with you first time in last year. Thank you, sir. Just I was waiting for a long time because I have never visited West Delhi Study Circle. And East हो गया, North हो गया, South हो गया, but it took me to 8 years to reach you, sir. So I'm really grateful to all of you. It is your honor, sir. And once Pramod ji को हमेशा भाई साहब कहते हो, Pramod भाई साहब is there. So I don't feel there is any need of any other faculty, because he is the person, you know, that he has command on so many subjects. Sometimes I surprise that he has a good command over accounting matters, auditing matters, tax audit, company law matters, and the list is endless. So the way and the kind of professional contribution he has given for last number of years by way of articles, compilations, and number of compilations I used in my own practice. खास तौर से जो उन्होंने टैक्स ऑडिट का एक बहुत मतलब रिमार्केबल कंपाइलेशन बनाया हुआ है. So I really congratulate भाई साहब and appreciate his efforts as a council member also. Thanks a lot, sir. Thanks a lot, Gopal ji, for the kind words. And we, as a member of the profession, we feel that the person like him should be in the council. And sir, आप जैसे लोगों के होने से ही council और profession का भला है. तो मैं तो यही कहता हूँ, आप जिस तरह से contribution profession में मतलब council में आने से पहले और council में आने के बाद जिस तरह आपका हो रहा है, it is really remarkable and it's a learning for all of us. तो आज का टॉपिक जो आपने रखा है वैसे तो आपका ही फेवरेट टॉपिक है सर ये.
And you are basically now we can say the author and regulator also in all these matters as a member of the Accounting Standard Board or AASB. So to my mind, if you really ask me, the going concern of the reporting entities as well as the going concern of the auditors themselves are in trouble. आज हमारी अगर हम बात करें, ह्यूमन बीइंग्स आर आल्सो इन ट्रबल. हमारे पंचतत्व भी ट्रबल में है सर, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो ट्रबल में है ही. जी. और एंड प्रोबब्ली in the history of ICI, probably first time in the history of ICI, Accounting Standard Board and AASB joined the hands together and issue a guidance on 27th of March. अगर मेरी नॉलेज में सर पहली बार ऐसा हुआ कि ASB और AASB ने मिलके कोई जॉइंट वेंचर इनिशिएट किया हो, और चूंकि इस तरह की सिचुएशन कभी 100 इयर्स में एक आध बार आती है, तो जो आई और उसको दोनों को एड्रेस किया. इसलिए एड्रेस किया कि ASB ने अपने अकाउंटिंग मैटर्स को देखा और AASB ने ऑडिटिंग मैटर्स को साथ में एड्रेस किया. So this paper was basically issued for the guidance of the members well in time, I would say, क्योंकि बैंक ऑडिट स्टार्ट होने से पहले ये 27th of March को आ गया था. तो बिफोर स्टार्टिंग माय डेलिब्रेशन, हालांकि भाई सब साथ में है तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा उनसे कि जहां फाइन ट्यूनिंग की जरूरत हो, रिफाइनमेंट की जरूरत हो, इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत हो, साथ के साथ आप करते जाएं. तो बट बिफोर स्टार्टिंग दैट फ्रेंड्स, लेट्स शेयर दैट हमें कुछ बेसिक में जाना चाहिए. पहले बेसिक क्या है हमारा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है? अगर इंड AS की बात करें तो 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम इंड AS में बना रहे हैं आज के टाइम में. बैलेंस शीट बनाते हैं, चेंज इन इक्विटी, प्रॉफिट एंड लॉस, अदर कंप्रेहेंसिव इनकम OCI एंड कैश फ्लो. तो हमारे 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं और इन 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर 5 ही एलिमेंट बैठे हुए हैं सर वर्ल्ड वाइड. दैट इज लायबिलिटी, एसेट्स, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड इक्विटी. छठवां सर मुझे नहीं मिला. 5 ही वर्ल्ड वाइड 5 एलिमेंट्स इन 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैठते हैं. तो हम कहते हैं ये हमारे पंच तत्व से बने हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एंड वी आर आल्सो कंपोज्ड ऑफ 5 एलिमेंट्स: चित जल पावक गगन समीरा, पंच जनिते अधम शरीरा. और आज कोविड की वजह से दोनों की एग्जिस्टेंस ट्रबल में है, चाहे ह्यूमन बीइंग की हो या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हो. और इंसिडेंटली कोविड में भी 5 ही कैरेक्टर आ रहे हैं सर, COVID. जो चैलेंज करने वाला है वो भी पंचतत्व से ही बना है इनडायरेक्टली. तो सब कुछ 5 है. इनकम टैक्स के हेड 5, ज्ञानेंद्रियां 5, कर्मेंद्रियां 5. तो कुछ 5 का ऐसा नाता है प्रोफेशन के साथ कि है कुछ नेचुरल नाता है इसका, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी हमारे जितने भी हैं वो 5 ही तरह के प्रिंसिपल्स लेट डाउन करते हैं. छठवां कोई प्रिंसिपल ना इंड AS के अंदर है ना IFRS के अंदर है. तो इन 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो 5 एलिमेंट्स बैठे हैं, इनकम, एक्सपेंडिचर, इक्विटी, लायबिलिटी एंड एक्सपेंडिचर, एसेट्स, इन्हीं की आज बात करनी है कि इन पे इम्पैक्ट क्या आने वाला है. ये पंच तत्व पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है कोविड की वजह से, ये कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या इम्पैक्ट आ रहा है, आएगा, और उसको कैसे देखना है. तो सबसे बड़ा चैलेंज उसके लिए समझने के लिए ये है, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इट इज द हाई टाइम टू रीड द फ्रेमवर्क फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सर अनम्यूट होगी सर, आवाज अनम्यूट होगी. हकीकत यही है कि सर फ्रेमवर्क की हम बात कर रहे हैं. सो वी मस्ट नो द डेफिनेशन ऑफ ऑल दीज टर्म्स. ये डिस्कशन का फायदा तभी होगा जब हम उसकी डेफिनेशन जानेंगे कि एसेट है क्या, कौन सी आइटम है जो एसेट हो सकती है और कौन सी आइटम है जो एसेट नहीं हो सकती. इसी तरह से लायबिलिटीज क्या है, इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है और इक्विटी क्या है. ये ऑल दीज 5 टर्म्स हैव बीन डिफाइंड इन द फ्रेमवर्क ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. और ये बेसिस है हमारी. बेसिकली जब भी हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो ये पहले 5 टर्म्स की हम डेफिनेशंस देखते हैं और उसके बेसिस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में जाते हैं. तो थोड़ा मेरे साथ आप लोग रहिएगा. मैं थोड़ी सी सुबह लगेगा कि स्टार्टिंग में बोरिंग बात कर रहा हूं, लेकिन आपको बिल्कुल जोड़ के रखूंगा, कोशिश करूंगा. 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मैंने बात की है, उसके अंदर 5 एलिमेंट बैठे हुए हैं, राइट. उन 5 एलिमेंट की डेफिनेशन और उनको कैसे बिठाना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, इसके प्रिंसिपल्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताते हैं. और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन से प्रिंसिपल्स बताते हैं? 5 प्रिंसिपल्स क्या है?
सबसे पहला है रिकॉग्निशन प्रिंसिपल्स। रिकॉग्निशन, आप रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करेंगे, कौन बताता है? एएस बताता है। आप जो लाइफ लाइन आइटम है P&L की, पहली ब्लड लाइन आइटम जिसको हम बोलते हैं रेवेन्यू की, उसके रिकॉग्निशन के प्रिंसिपल्स एएस बताते हैं। सेकेंड प्रिंसिपल्स एएस बताते हैं सर मेजरमेंट। रिकॉग्नाइज अगर हम कहते हैं कि हाँ ये हमारी इवेंट है या सर्कमस्टांसेस है या ट्रांजैक्शन, तीन चीजों को हम कैप्चर करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। या तो ट्रांजैक्शंस को कैप्चर करते हैं सर, ट्रांजैक्शन होगी तो रिकॉर्ड जरूर होगी, राइट, लेकिन इवेंट और सर्कमस्टांसेस को भी कैप्चर करते हैं। तो उसकी रिकॉग्निशन कब और कैसे होगी ये एएस बताता है। सेकंड प्रिंसिपल से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेट डाउन करते हैं मेजरमेंट, कि उसको मेजरमेंट उसकी कैसे करेंगे। लार्जली हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कन्वेंशन पे चल रहे थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर, लेकिन हम देखते जरूर है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड अंडर हिस्टोरिकल कॉस्ट कन्वेंशन। लेकिन मैं कभी अपने आप से पूछूं कि कोई भी ऐसी कंपनी है जो केवल हिस्टोरिकल कॉस्ट कन्वेंशन पे चलती हो? बिल्कुल ऐसा नहीं है। रीजन बीइंग कि देयर आर नंबर ऑफ आइटम्स व्हिच आर मेजर्ड अदरवाइज आल्सो। अगर हम अगेन एंड अगेन, तो आज इन्वेंटरी का भी एक टॉपिक इसके अंदर है, तो उसको हम मेजर करते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अगर हम रिटायरमेंट बेनिफिट्स की बात करें उसको हम प्रेजेंट वैल्यू पे मेजर करते हैं। तो होना क्या चाहिए, डबल, कई बोर्ड ने ये भी लिखा कि हमें इस तरह से लिखना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड अंडर हिस्टोरिकल कॉस्ट कन्वेंशन अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। तो मेजरमेंट का दूसरा प्रिंसिपल है रियलाइजेबल वैल्यू, तीसरा प्रिंसिपल है करंट कॉस्ट, चौथा है प्रेजेंट वैल्यू, और पांचवा इंड एएस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है फेयर वैल्यू। तो 5 तरह से मेजरमेंट करते हैं हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एलिमेंट्स को। थर्ड पॉइंट है सर क्लासिफिकेशन, कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन 5 हेड को क्लासिफाई कैसे करें। इसके बारे में भी हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताते हैं, या शेड्यूल 3 टू द कंपनीज एक्ट या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बताता है कैसे क्लासिफाई करेंगे, क्या आइटम इनकम है, क्या आइटम कैपिटल है, क्या आइटम रेवेन्यू है ब्रॉडली। फिर फिक्स एसेट्स अगर पीपी है तो उसमें कैसे कैसे क्लासिफिकेशन है, इसको भी एएस बताते हैं, राइट। चौथा आइटम आता है आपका, चौथा जो प्रिंसिपल है मेजरमेंट का वो है डिस्क्लोजर्स, कि क्या क्या चीज डिस्क्लोज करनी है। तो डिस्क्लोजर्स भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताते हैं अलॉन्ग विद कंपनीज एक्ट। और पांचवा प्रेजेंटेशन। तो ये 5 चीजें हैं जो इंपैक्ट होंगी कोविड की वजह से। रिकॉग्निशन प्रिंसिपल्स कोविड की वजह से इंपैक्ट होंगे, मेजरमेंट के प्रिंसिपल लार्जली कोविड की वजह से इंपैक्ट होंगे, इवन क्लासिफिकेशन बदल जाएगी सर कोविड की वजह से। आप पूछोगे क्लासिफिकेशन कैसे बदल जाएगी, हो सकता है कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट हो और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हो और उसके टर्म्स रिवाइज हो जाए, वो शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट हो जाए, आपका लॉन्ग टर्म लोन हो वो करंट लोन बन जाए। सो एन नंबर ऑफ सर्कमस्टांसेस कुड बी देयर जहां पर आपकी क्लासिफिकेशन ही चेंज हो जाएगी। बोरोइंग कॉस्ट अगर पता लगा आपका 4 महीने सस्पेंड रहा कैपिटलाइजेशन, तो बोरोइंग कॉस्ट आपकी कैपिटल की बजाय रेवेन्यू बन जाएगी। तो क्लासिफिकेशन विल गेट इटसेल्फ अफेक्टेड। फोर्थ, डिस्क्लोजर्स। चूंकि प्रबोध भाई साहब हमारे साथ हैं तो मैं शेयर करना चाहूंगा भाई साहब के साथ, अभी तक जितने पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आए हैं बड़ी कंपनीज के, उन्होंने एनुअल रिपोर्ट के अंदर कम से कम 30 to 50 टाइम्स कोविड वर्ड यूज किया है मैनेजमेंट ने, which itself speaks about the truth कि कोविड का इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर है 30 to 50 टाइम्स। जस्ट फॉर एकेडमिक पर्पज भी है, आजकल तो बहुत इजी हो गया सर्च करना कि कितनी बार इन्होंने कोविड वर्ड यूज किया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हो ना हो, एनुअल रिपोर्ट के अंदर उन्होंने नंबर ऑफ टाइम्स दे हैव डेल्ट विद दिस एस्पेक्ट। एंड ऑफ कोर्स प्रेजेंटेशन, कि आपकी प्रेजेंटेशन किस तरह से रहेगी। तो ये 5 प्रिंसिपल्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेट डाउन करते हैं विच आर गेटिंग अफेक्टेड बाय वे ऑफ कोविड, और उसको एक एक करके आज डिस्कस करेंगे। इसी तरह से अगर हम ऑडिट की भी बात करेंगे तो ऑडिट स्टैंडर्ड्स में कुछ ऐसे स्टैंडर्ड है जिसको अगेन हम 5 स्टैंडर्ड ऐसे कहते हैं जो रिपोर्टिंग के लिए 5 फंडामेंटल आज हम बात करेंगे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की, जिसके बिना कोविड को डील नहीं कर सकते। और वो हमारे बेसिक स्टैंडर्ड है 700, जहां पर हम क्लीन ओपिनियन की बात करते हैं। फिर 701 की ऑडिट मैटर्स। हालांकि अभी 10-12 जितनी भी मैंने 15-20 बैलेंस शीट स्टडी की उनमें की ऑडिट मैटर्स में इस कोविड को बहुत अच्छे से डील नहीं किया,
हो सकता है उनका इम्पैक्ट उतना ना हो, अगले साल में आए, बट कोविड 701 will definitely get attracted by COVID. इसका 705, 706 और 720. 720 is very very important for COVID purpose. जहां पर एनुअल रिपोर्टिंग की हम बात करेंगे कि एनुअल रिपोर्ट्स में मैनेजमेंट क्या क्या अपना ओपिनियन देगा, क्या जजमेंट्स देगा, तो 720 वहां पर प्ले करेगा। तो ये 5 ही रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स तो और भी हैं, बट ये 5 स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो विच आर वेरी क्लोज टू एवरी काइंड ऑफ रिपोर्टिंग बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। और आप ये देखो, इंसिडेंटली अभी तक 5 ही गाइडेंस आईसीआई की तरफ से आए हैं सर कोविड से रिलेटेड। सबसे पहला मैं अभी बात कर रहा था जो एएसबी और AASB ने मिलकर दिया 27 मार्च को, उसका हेड था कि कोविड का क्या इंपैक्ट होगा ऑन अकाउंटिंग एंड ऑडिट मैटर्स। हालांकि आज का हमारा टॉपिक ऑडिट कंसीडरेशंस पे आपने रखा है, आई नो दैट, बट जब तक हम अकाउंटिंग को डील नहीं करेंगे तो ऑडिट का एस्पेक्ट थोड़ा सा मुझे अधूरा लगता है। इसलिए मैं थोड़ा सा लिबर्टी लेना चाहूंगा आप लोगों से कि अकाउंटिंग और ऑडिटिंग को हम साथ साथ डील करें। सेकेंड गाइडेंस आया गोइंग कंसर्न के ऊपर कि अगर किसी कंसर्न की गोइंग कंसर्न अजम्पशन ही ट्रबल में आती है तो किस तरह से उसको डील करेंगे, एज ए ऑडिट में कैसे डील करेंगे और मैनेजमेंट उसको किस तरह से डील करेगा। फिर तीसरा पॉइंट आया इन्वेंट्री का कि ईयर एंड पर इन्वेंट्री की फिजिकल वेरिफिकेशन में जो ऑडिटर्स की प्रेजेंस या ऑब्जर्वेशन चाहिए होती है, दैट कुड नॉट बी पॉसिबल, तो उसको हम कैसे डील करेंगे। फिर अगला गाइडेंस आया ऑडिट रिपोर्टिंग का, जिसमें उन्होंने सारे स्टैंडर्ड्स को अलग अलग तरीके से डील किया। और पांचवा लेटेस्ट गाइडेंस अभी जो है सब्सिक्वेंट इवेंट्स का 23 मई को। तो ये 5 गाइडेंस आ चुके हैं। अगर कोई एक गाइडेंस पढ़े तो वो अधूरा है, और अभी टू माय माइंड ये सीरीज आएगी भी और भी आगे आते जाएंगे। जिस तरह से फ्रेंड्स को, मेंबर्स को प्रॉब्लम आ रही है, दे आर टेकिंग अप द मैटर विद आईसीआई, और जो हमारे प्रमोद एजेंसी जैसा साहब जैसे लोग बैठे हुए हैं, दे आर डीलिंग विद द मैटर। तो ये 5 गाइडेंस ऑलरेडी आईसीआई के आ चुके हैं 27 मार्च से और 23 मई के बीच में। ये पांचों बहुत रेलेवेंट है फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग। अब अगर हम बात करते हैं किसी भी कि उसके ऊपर इम्पैक्ट क्या आ रहा है सर, तो सबसे इसका इम्पैक्ट कई तरह से है। इसका इम्पैक्ट डेमोग्राफिक भी है। अगर हम मैक्रो व्यू लें तो किस कंट्री में विच वाज मोस्ट हिटेड, अगर हम न्यूजीलैंड एक तरफ लेते हैं और दूसरी तरफ यूएस को देखते हैं, तो ऑल टुगेदर 360 डिग्री पे खड़े हुए हैं दोनों कंट्री। हालांकि उनका कहीं कंपैरिजन नहीं है, तो कंट्री लेवल पर भी इसका इम्पैक्ट देखना पड़ेगा कि जिस कंट्री के साथ हमारी रिपोर्टिंग एंटिटी डील कर रही है। उसके बाद इंडस्ट्री स्पेसिफिक है। सबसे ज्यादा हिट अगर है तो होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, एविएशन, तो फ्यू इंडस्ट्रीज आर वेरी बैडली हिट। अगर आप देखें तो जो नेसेसिटी जो उनकी इंडस्ट्री सबसे कम हिट हुई है टू माय माइंड, क्योंकि उनकी लॉकडाउन में भी वो सब एक्टिविटी चलती रही, तो वो इंडस्ट्री कम हिट हुई। लेकिन कुछ इंडस्ट्री बिल्कुल पूरी तरह से हिट हैं, तो उस पे इम्पैक्ट ऑफ कोर्स ज्यादा आएगा। जिन इंडस्ट्रीज का पूरा डिपेंडेंट टूरिज्म पे था, कुछ होटलिंग इंडस्ट्रीज थी, तो और तीसरा ऑफ कोर्स एंटिटी स्पेसिफिक भी होगा। अल्टीमेटली तो एंटिटी स्पेसिफिक पे हमें जाना है, क्योंकि हम रिपोर्टिंग एंटिटी लेवल की करेंगे। अगर हम बात करें, सबसे पहले एस्पेक्ट हम उठाते हैं इन्वेंट्री का, कि अगर हर चीज में देखना क्या है कि 31 मार्च को जो हमारे ये एसेट्स और लायबिलिटीज, सबसे बड़ा इसमें चीज यही देखने वाली है कि जो 31 मार्च को एसेट्स की वैल्यूएशन कर रहे हैं या लायबिलिटीज की जो वैल्यूएशन हो रही है, लायबिलिटी जिस वैल्यू पे स्टेट हो रही है वो वही है या उससे ज्यादा है। क्योंकि टू माय माइंड कोविड की वजह से लायबिलिटीज तो बढ़ेंगी और एसेट्स इंपेयर्ड होंगी। क्यों? अब आप पूछेंगे लायबिलिटी कैसे बढ़ेगी। अब लायबिलिटी इस तरह से बढ़ सकती है कि हो सकता है आप रिट्रेंचमेंट में जाएं, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जाएं, और आपको उस समय टर्मिनेशन बेनिफिट्स पास ऑन करने पड़े। सेकंड है कि आपकी कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस ऑनरस नेचर के हैं, वो आपको ऑनर करने पड़े, तो लायबिलिटीज आपकी ऑफ कोर्स बढ़ेंगी और एसेट्स ऑन द अदर हैंड इंपेयर्ड होंगी। तो सबसे पहले हम आइटम इन्वेंट्री उठाते हैं कि जहां पर बात करते हैं नेट रिलाइजेबल वैल्यू की, एनआरवी। तो एनआरवी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन होगी कैसे। एक तो बड़ा चैलेंज है कि उसका फिजिकल वेरिफिकेशन ऑडिटर्स ने अटेंड नहीं किया। तो जब फिजिकल वेरिफिकेशन ऑडिटर्स ने अटेंड नहीं किया सर, तो उसको एड्रेस कैसे करेगा। स्कोप लिमिटेशन इज देयर। तो उसमें पॉइंट यही आएगा कि
ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स क्या हम अप्लाई करेंगे? ऐसा नहीं कि हम इन्वेंट्री का अगर हमने फिजिकल वेरिफिकेशन ऑब्जर्व नहीं किया, उस समय हम प्रेजेंट नहीं थे, हमारी टीम प्रेजेंट नहीं थी, तो हमारे पास ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स भी हैं। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 501 डील्स विद इट कि अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस ऑडिटर उसका एपीपी जिसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स लगा के ऑडिट कर सकते हैं। लेकिन जहां तक उसकी वैल्यूएशन की बात है सर, तो वैल्यूएशन हमें जरूर देखनी है। नेट रियलाइज्ड वैल्यू पे जो इन्वेंट्री स्टेट होनी चाहिए, और ऑफ कोर्स रीड विद सब्सिक्वेंट इवेंट्स कि उस इन्वेंट्री की वैल्यूएशन प्रॉपर हो रही या नहीं हो रही, वो कहीं ओवर स्टेट तो नहीं कर रहे हैं। तो इन्वेंट्री का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसी तरह से इम्पेयरमेंट ऑफ द रिसीवेबल्स, आपके रिसीवेबल्स हैं, हो सकता है आपको कंफर्मेशन भी मिल गई हो, लेकिन अगर आप जून जुलाई अगस्त में लिस्टेड कंपनीज के लिए ऑफ कोर्स सब्सिक्वेंट इवेंट का टाइम कम होता है, इस बार फिर भी ज्यादा मिल गया, 75 डेज तक मिल गया, अदरवाइज तो 45 डेज ही मिलता है ऑडिटर्स को। तो उसमें सब्सिक्वेंट इवेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यही देखना है कि जो रिसीवेबल्स हम स्टेट कर रहे हैं वो कितने रिकवरेबल है या नहीं है, या उसमें कितनी प्रोविजनिंग की जरूरत है। कई बार हमारे फ्रेंड्स ये बात करते हैं कि साहब हम तो जीएसटी के हिसाब से ऐसे चलेंगे, तो मैं कहता हूं कि जीएसटी और इनकम टैक्स से अकाउंटिंग का लेना देना कोई नहीं है सर। वी हैव टू सी द स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जब भी हम अकाउंटिंग की बात करेंगे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से करेंगे, ना कि आईसीडीएस के हिसाब से करेंगे और ना ही जीएसटी के प्रोविजंस के हिसाब से करेंगे। तो अगर रिसीवेबल्स हमारे इम्पेयर्ड हो रहे हैं तो वी हैव टू मेक द प्रोविजन अकॉर्डिंगली। और केवल रिसीवेबल्स नहीं, आपकी इन्वेस्टमेंट भी आपकी इम्पेयरमेंट, तो आपकी हर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का और नॉन फाइनेंशियल एसेट है सभी का इम्पेयरमेंट हमें करना है टेस्ट। और हमारे स्टैंडर्ड्स देखा जाए तो इस तरह की आपदाओं के बारे में पहले भी बात करते रहे हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार उन्होंने बात की है। कैटास्ट्रॉफी एक वर्ड बार बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में यूज होता है कि अगर कोई कैटास्ट्रॉफी है तो इस तरह के प्रिंसिपल्स लगाएंगे, इम्पेयरमेंट टेस्ट करेंगे। तो इस सर्कमस्टांसेस इस बार पूरी तरह से इस तरह की हैं कि हर आइटम की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होनी है, राइट सर? चाहे आपकी इन्वेंट्री हो, चाहे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब रिसीवेबल्स वगैरह से है, और आपका इन्वेस्टमेंट हो, कुछ भी हो, तो उसको आपको करना है। इसी तरह से जब ये पहला वाला गाइडेंस नोट आया सर, तो उसमें उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बेस लेते हुए उठाया कि हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी आइटम इफेक्टेड होती है। तो दूसरे नंबर पे हमारी थी इन्वेंट्री। पहली तो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज को डिस्क्लोजर की है, दूसरा है इन्वेंट्री। की इन्वेंट्री में सबसे बड़ा चैलेंज था कि इसका फिजिकल वेरिफिकेशन ऑडिटर ने कैसे करना है और उसकी वैल्यूएशन में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। कैश फ्लो बेसिकली P&L और बैलेंस शीट से एब्स्ट्रैक्ट होता है, तो कैश फ्लो की कोई बात नहीं की। चौथा जो स्टैंडर्ड हमारा है, इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स है, इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट। अब मैं एएस वाइज चल रहा हूं सर, इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट से। तो प्रमोद जी एंडोर्स करेंगे, दो तरह की हमारी इवेंट्स होती हैं कि एडजस्टिंग एंड नॉन एडजस्टिंग। तो ये कोविड वाली जो इवेंट है ये एडजस्टिंग नेचर की है, क्योंकि 31 मार्च को कोविड की सर्कमस्टांसेस थी, हम लॉकडाउन में थे। बेसिकली दोनों में फर्क क्या है, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग में? एनी सर्कमस्टांसेस व्हिच इज एग्जिस्टिंग एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, वो अगर कोई सर्कमस्टांसेस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी और फिर सब्सिक्वेंट उसके और एविडेंसेस आए, तो उससे हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्ट करना पड़ता है, एलिमेंट्स को एडजस्ट करना पड़ता है। और कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस जो 31 मार्च को तो नहीं थी, उसके बाद हुई, जैसे फॉर एग्जांपल 2 अप्रैल को किसी फैक्ट्री में फायर हो जाए या 1 अप्रैल को अर्थक्वेक आ जाए, तो 31 मार्च को तो वो सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। तो ये इस तरह की जो आइटम्स होती हैं वो नॉन एडजस्टिंग नेचर की होती हैं। तो दो तरह की आइटम्स हैं, एडजस्टिंग एंड नॉन एडजस्टिंग। कोविड-19 एडजस्टिंग इवेंट में है, क्योंकि 31 मार्च से पहले कोविड वाज टोटली इन वेग, आप कह सकते हो पूरी तरह से था, लॉकडाउन में थे। तो एडजस्टिंग इवेंट है, हमें हर आइटम्स का इम्पेयरमेंट, हर आइटम की मेजरमेंट। सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हो रहा है कोविड से, पहला तो रिकॉग्निशन, कि कई जगह तो ऐसा है कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करे भी या ना करे, क्योंकि आपकी अनसर्टेनिटी है कि पैसा आएगा भी या नहीं आएगा। और सेकंड है कि आपने रिकॉग्नाइज कर भी लिया, तो 31 मार्च को आपके रिसीवेबल्स जो खड़े हुए हैं उसको आपने ऑडिटर्स रिपोर्ट तक की डेट में देखना है सर कि वो रिसीवेबल्स कितने इम्पेयर्ड हो गए। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जितनी देर में ऑडिट रिपोर्ट साइन होगी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हिसाब से ऑडिटर की बढ़ती जाती है। अगर आप 30 अप्रैल को साइन कर देते हो तो आपको 30 दिन का ही देखना पड़ेगा सर, 30 दिन के मिनट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप 30 अगस्त को करते हो
So of course you have to go through the minutes and all kind of developments over the period of 5 months. तो उन महीनों में देखना पड़ेगा कि क्या डेवलपमेंट बिजनेस में हुई जो केवल उन आइटम से रिलेटेड जो 31 मार्च को एग्जिस्ट कर रही थी. ऑफ कोर्स वी आर नॉट ऑडिटिंग फॉर द सब्सिक्वेंट पीरियड, बट डेफिनेटली वी आर ऑडिटिंग एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट एंड वी आर एक्यूमुलेटिंग द एविडेंसेस फॉर दोज आइटम्स व्हिच आर एग्जिस्टिंग ऑन 31 मार्च. तो उन 5 महीनों में क्या उस रिसीवेबल्स का हाल था, उसने पेमेंट किया भी या नहीं किया. कई बार ये क्वेश्चन आया कि उसने कंफर्मेशन तो दे दी कि यस हम पैसा आपको देंगे, लेकिन अगर हम अगस्त में ऑडिट कर रहे हैं और अगर 5 महीने में उससे सिंगल पैसा नहीं आया है और नॉर्मल उसका जो नेचर था कि वो फ्रीक्वेंटली ट्रांजैक्शंस उसके साथ होती थी, तो इट इज ए बिग चैलेंज फॉर द ऑडिटर आल्सो टू बेसिकली सी द जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट कि उन्होंने इम्पेयर इसको क्यों नहीं किया या इसके लिए एडिक्वेट प्रोविजनिंग क्यों नहीं की या उस पार्टी की पोजीशन प्रैक्टिकली क्या है. तो सो मेनी चैलेंजेस आर देयर. तो इस चीज का बहुत एडजस्टिंग इवेंट का, इसीलिए इसके लिए स्पेसिफिक गाइडेंस आया सब्सिक्वेंट इवेंट का. देखा जाए AS4 के साथ अगर हम जोड़ें तो AS4 के साथ आपका ये ऐसे 560 सीधा सीधा लिंक है सब्सिक्वेंट इवेंट. तो AS4 का जो काउंटर पार्ट है वो 560 है कि सब्सिक्वेंट इवेंट ऐसी कौन कौन सी हुई हैं जिनको हमने कंसीडर किया है. और एक मैं बात फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो डॉक्यूमेंट होता है जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जहां पर प्रिवेल कर रही है, मिनट बुक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिकली डॉक्यूमेंट, और यू कैन से द एविडेंस गैदरिंग इंफॉर्मेशन. क्योंकि अगर मिनट में हर चीज मैनेजमेंट डिस्कस करता है. कई बार तो इस तरह का मुझे चैलेंज प्रैक्टिकली मिला, उन्होंने कहा मिनट बुक तो आप पढ़ ही नहीं सकते. मैंने कहा अगर सर ऑडिटर मिनट बुक नहीं पढ़ सकता तो फिर ऑडिट तो हो ही नहीं सकता. वी हैव टू सी द मिनट बुक कि मैनेजमेंट ने बाद में क्या डिसीजंस लिए, क्या चीजें डिस्कस हुई, किस तरह से उन्होंने चीजों को एड्रेस किया है. तो ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट ये भी है. इसके बाद कई आइटम्स आपके प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के हैं, उसके ऊपर भी गाइडेंस ICI ने दिया कि अच्छा इसमें एक चीज और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, चाहे हम इंडियास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं या AS में, कोविड इंपैक्ट दोनों को कर रहा है. लेकिन अगर हम देखें, अगर बहुत फाइन ट्यूनिंग की तरह से देखें तो ऑफ कोर्स जो IND-AS में उनको ज्यादा करेगा इफेक्ट, क्योंकि IND-AS के अंदर बेसिकली उन्होंने क्या किया है कि वहां पर जो टेस्टिंग मॉडल्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं. अगर हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के टेस्टिंग मॉडल की बात करें वहां के इम्पेयरमेंट की, वो आज बैंक ने क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया? क्योंकि वो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस की बात करता है. वो 90 डेज नॉर्म्स की बात नहीं करता प्रूडेंशियल की. वो कहता है एक्सपेक्टेड क्रेडिट, फ्यूचर में एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस क्या है, ECL क्या है आपका. तो मेरा मानना तो यही है कि जो IND-AS कंप्लाइंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, दे विल, अगर वो सही स्पिरिट से बनाए जाते हैं तो दे आर रियली गेट अफेक्टेड बाय द COVID-19. और अभी तो काफी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश हो भी चुके हैं और ऑफ कोर्स AS वाले भी पूरे काफी इंपैक्ट हो रहे हैं. तो उन सब चीजों को हमें देखना है कि किस तरह से करना है. अगला अगर हम स्टैंडर्ड बात करें रेवेन्यू रिकॉग्निशन की, तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन ऑफ कोर्स मार्च के महीने में अगर हम इस चीज को विटनेस करते हैं एज ऑडिटर कि सबसे ज्यादा अगर रेवेन्यू बुक होता है तो मार्च का होता है. ईयर एंड पे सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है किसी भी रिपोर्टिंग एंटिटी को, फॉर एन नंबर ऑफ रीजंस. आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट. और इस बार देखा जाए तो 20-21 मार्च के बाद से पोजीशन ये थी कि वो टाइम उनको रेवेन्यू रिकॉग्निशन का उस तरह से नहीं मिला. तो रेवेन्यू वाला आइटम भी बैडली अफेक्टेड है. PPE भी, PPE में हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की लाइफ इंपेयर हो गई हो सकता है उसकी रेजिडुअल वैल्यू इंपेयर हुई हो सकता है वो ऑफ इंडस्ट्री इस तरह की हो गई हो कि आपको लग रहा हो कि ये यूज ही नहीं होगी. तो उन सब चीजों के टेस्ट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे हमें लगा के चलने पड़ेंगे और उसके हिसाब से उनको डील करना पड़ेगा. सर एक बात करते हैं कि प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, जहां पर आपके कॉन्ट्रैक्ट्स ब्रीच हो रहे हैं और जहां फोर्स मैजेयोर क्लॉजेज हैं कहीं और कहीं नहीं भी हैं. अगर देखा जाए पहली बार हम लोगों को लाइफ में ऐसा फील हुआ कि फोर्स मैजेयोर क्लॉजेज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज है किसी भी एग्रीमेंट की, और अगर वो नहीं है या तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है नेगोशिएशंस के लिए, आर्बिट्रेशन के लिए भी. तो उसको देखना है कि उसको किस तरह से लोग एड्रेस करेंगे. अगर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट है उनको किस तरह से एड्रेस करेंगे, उनकी किस तरह से उनकी अकाउंटिंग करेंगे. लाइकवाइज ICI ने कहा कि अगर बोरोइंग कॉस्ट है और 4 महीने के लिए आपकी एक्टिविटीज या 6 महीने के लिए आपकी एक्टिविटीज सस्पेंड हो गई और आपने
आपकी कैपिटलाइजेशन अंडर कैपिटलाइजेशन थी, आपने टर्म लोन ले रखे थे, तो 6 महीने के लिए अगर आपका कैपिटल सस्पेंड हो गया कंस्ट्रक्शन वर्क, तो उस 6 महीने की कॉस्ट को आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते सर, एज पर AS 16 बोरोइंग कॉस्ट। तो इन दैट केस इट हैज टू बी एक्सपेंस्ड ऑफ। सबसे बड़ा हिट तो यही है कि बहुत सारी आइटम्स जो हैं एसेट की डेफिनेशन को पूरा नहीं करेंगे, उनको P&L को अल्टीमेटली उसमें हिट लेना पड़ेगा। ये बोरोइंग कॉस्ट वाला भी हिट P&L को ही जाएगा। जो सस्पेंशन रहेगा आपका कैपिटलाइजेशन का, उस पीरियड का अगर कोई इंटरेस्ट है, इट वुड हैव टू बी एक्सपेंस्ड ऑफ। और लाइकवाइज उन्होंने कहा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिपोर्टिंग पे चीजें इंपैक्ट करेंगी, ऑफ कोर्स इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे भी। और सबसे ज्यादा अगर इफ यू रियली आस्क मी, 30 जून के जो रिजल्ट्स आएंगे सर, जून क्वार्टर एंडिंग के, और जो मार्च में लोगों ने पब्लिश कर दिए, वो देखने लायक होंगे कि उसमें किस तरह से कितना बड़ा इंपैक्ट आने वाला है। इसी तरह से बात की AS 22 की, डेफर्ड टैक्स एसेट्स की। अभी तो एंटिटी की गोइंग कंसर्न ट्रबल में है। अभी लोग कह रहे हैं कि फोर्सिएबल फ्यूचर में हमें कोई प्रॉफिट्स होने वाले नहीं है। तो उस केस में आप देखेंगे मार्च 19 की जो बैलेंस शीट बनेगी, वो मार्च 20 की बैलेंस शीट में डेफर्ड टैक्स एसेट्स सबसे बड़ा हिट लेने वाला है, क्योंकि वी वुड नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज द डेफर्ड टैक्स एसेट एज सच। और खास तौर से जो डीमेट वगैरह के क्रेडिट्स हैं, वो तो पीछे भी गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी जैसी आई है कि अगर आप कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स एंजॉय करना चाहते हैं, तो यू विल हैव टू ड्रॉप द मैट क्रेडिट एंटाइटलमेंट एंड ऑल दैट। तो उससे भी इफेक्ट होंगे। और अदरवाइज भी जो डेफर्ड टैक्स एसेट्स या इनकम टैक्सेस की जो प्रोविजंस हैं, वो कोविड की वजह से जहां पर आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एसेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ कैरिड फॉरवर्ड लॉसेस, और आप नाउ इन द फोरसीएबल फ्यूचर यू वुड नॉट बी एबल टू रिकूप इट, in that case it has to be expensed off through P&L। इसी तरह कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी इफेक्ट होंगे, इंटरिम भी होंगे, कंसोलिडेटेड भी होंगे, स्टैंड अलोन भी होंगे, तीनों तरह के होंगे, उसमें तो कोई बात है ही नहीं। एंड अगर हम बात करें कि ये जितने भी अकाउंटिंग मैटर्स हैं जो इम्पैक्ट होंगे, अगर हम बैलेंस शीट का एक तरफ से उठाएं तो PPE से शुरू करते हैं। गुडविल है सबसे बड़ी। अगर हमारी कोई मर्जर का केस है और गुडविल हमने एक्वायर की है, अदरवाइज तो हम गुडविल को रिकॉग्नाइज नहीं करते, लेकिन अगर हमने गुडविल एक्वायर की हुई है तो गुडविल को हम मेजर करते हैं। और इन सब सर्कमस्टांसेस की वजह से, कोविड की वजह से गुडविल जैसी चीजें ड्रेस्टिकली इंपेयर्ड होंगी। तो उन चीजों को भी देखना है कि कौन कौन सी तो एसेट्स कौन कौन सी इंपेयर्ड हो रही हैं और लायबिलिटीज आपकी कौन कौन सी ऊपर जा रही हैं। अगर मैं जैन साहब से भी यही बात करना चाहूंगा कि सर यही देखें कि एसेट तो हमारी नीचे जाएंगे, कोविड की वजह से एसेट्स तो नीचे जाएंगे और लायबिलिटीज ऊपर जाएंगी, दोनों की डायरेक्शन रिवर्स होगी, और उसका दोनों का हिट लेगा P&L, प्रॉफिट एंड लॉस में उसका दोनों का हिट जाना है। तो यही एक सबसे बड़ा चैलेंज है, और इसमें मैनेजमेंट बहुत सारे जजमेंट्स और एस्टिमेट्स लेंगे, जो कि ऑडिटर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपसे कि मैनेजमेंट तो कहता है नहीं साहब, फोरसीएबल फ्यूचर में हमारे प्रॉफिट्स होंगे एंड वी वुड बी एबल टू रिकूप द डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लेकिन ऑडिटर्स को अपने आप को कन्विंस करना है कि डेफर्ड टैक्स एसेट्स रिकॉग्नाइज करने के लिए, खासतौर से जहां कैरी फॉरवर्ड लॉसेस के केसेस हैं, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के केसेस हैं, वहां पर वर्चुअल सर्टेनिटी चाहिए होती है सर। अब वर्चुअल सर्टेनिटी अगर है या नहीं है, और मैनेजमेंट ने किस तरह से एस्टिमेशंस अपनी ली हैं, क्या उन्होंने जजमेंट्स लिए हैं, तो ये सब मैटर्स जितने इस तरह के हैं जहां मैनेजमेंट की रिस्क असेसमेंट में ऑडिटर्स को कहीं कुछ कहना है, तो की ऑडिट मैटर में जरूर आना चाहिए ऑडिटर्स रिपोर्ट के अंदर। अब मैं ऑडिटर्स रिपोर्ट की अगर बात करता हूं कि ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या चीजें आनी चाहिए, अगर देखा जाए सच पूछो तो इस बार बैंक ब्रांच ऑडिट में स्कोप लिमिटेशन सबसे बड़ा पैराग्राफ रहा, और सभी मेरे ख्याल से 80% ऑफ अवर फ्रेंड्स रिपोर्टेड द स्कोप लिमिटेशन पैराग्राफ अंदर OMP अदर मैटर पैराग्राफ। और कई तो सेंट्रल ऑडिटर्स के भी फोन आ चुके हैं कि यार इन्होंने ब्रांच ऑडिटर्स ने इतनी सारी लिमिटेशंस डाल दी, तो सेंट्रल ऑडिटर अब इसको कैसे एड्रेस करे। So I am eagerly waiting for the first 15 तारीख को उन्होंने AGM फिक्स कर दिया 17 जून को, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि एनुअल रिपोर्ट भी आ जाएगी। गोपाल जी यहाँ पे मैं एक चीज जो what you have said basically regarding this bank audit and the scope limitation, you know, जी सर, the moment an auditor says that I was limited by my scope, Yes. scope was limited, then he has no option but either to
rescind from the audit, leave that audit, or issue a disclaimer. Because that is the basic purpose. Because when he is not having that scope, his scope is reduced, then he is not getting the appropriate audit evidence. So when he is not getting the appropriate audit evidence, he cannot say it is true and fair. So in my view, whenever in the bank audits, because I've received various questions from various our colleagues on the bank audit, though I don't do bank audit. So Yes, on yes. the general parlance, what I said, that the Yes, moment you say that my scope was limited, then in my view, you cannot give a very unmodified report, a clean report. I say 700 you cannot use, you have to use 705. This is my view. I don't know your views required out. नहीं, इसमें मेरा मानना इस तरह से है भाई साहब कि अगर हम कुछ अपने ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स लगा के somehow we are getting convinced. अब जैसे हम बैंक ऑडिट की बात करें, सबसे ज्यादा हमने इसमें क्या फेस किया कि पीपल वर कंडक्टिंग द बैंक ऑडिट थ्रू रिमोट ब्रांचेज, और उनके पास जो डेटा आ रहा था स्कैन्ड डेटा आ रहा था. तो प्राइमा फेसी वन कैन नॉट प्रेज्यूम कि ये डेटा जो स्कैन्ड होके आ रहा है वो फेक है या रिलायबल नहीं है. बट ऑफ कोर्स you have to inform to the basically stakeholders or the SCA कि हमने स्कैन डेटा के बेस पे ऑडिट किया है. तो अंडर सच सर्कमस्टांसेस टू माय माइंड सर, क्योंकि अब मैं आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया है, क्वालिफिकेशन कब होनी चाहिए, तो उसकी मैं बात करूंगा. वो सर यहाँ पे ना स्कोप मेरा लिमिटेड नहीं हुआ. यहीं पे आएगा कि कब हम क्वालिफाई करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को. कह रहे नहीं गोपाल जी, you are not audible sir. गोपाल जी, इस केस में क्या हुआ कि मेरा स्कोप लिमिट नहीं हुआ. सो माय वर्डिंग इन द अदर मैटर is very very important. How do I word it? What I worded? If I say I was given nothing, Yes, कुछ नहीं allow किया, and then say everything is true and fair, then the auditor is gone. So auditor yes, has to be that very is careful. true. That is true. He has to be very specific. So as far as accounting matters are concerned, so far as the COVID is concerned, the things will come up or crop up through key audit matter paragraphs. अगर कहीं ऑडिटर्स को किसी भी तरह की कहीं बात कहनी है, लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली यही है कि की ऑडिट मैटर्स काम इज नॉट द सब्स्टिट्यूट ऑफ एनी क्वालिफिकेशन. आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कब क्वालिफाई करेंगे और कब नहीं करेंगे, ये एक बहुत बड़ा एक चीज समझने वाली है. और मैं चाहूंगा कि आज उस पर मैं 15-20 मिनट लूं आप लोगों के, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. और हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स इस चीजों पे थोड़ा सा कहीं उनका डिफरेंट व्यू रहता है. तो एक रीजन उसको समझने वाला है कि हम अपनी ओपिनियन को कब किस तरह से क्वालिफाई करते हैं नहीं करते हैं. देखो, ये 5 एलिमेंट मैंने जो आपसे डिस्कस किए हैं, एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड इक्विटी, इनका एक फ्रेमवर्क है, और वो फ्रेमवर्क है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. ऑफ कोर्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से रिकॉग्निशन हो रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मेजरमेंट हो रही है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से क्लासिफिकेशन भी हो रही है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से डिस्क्लोजर्स भी हैं, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से प्रेजेंटेशन भी है. पांचों चीजें मीट आउट हो रही हैं आपकी जिस तरह से आपको चाहिए. रीड विथ, ऑफ कोर्स अगर फ्रेमवर्क, हम एक वर्ड यूज करते हैं कि किस फ्रेमवर्क में बने हुए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो हमारा फ्रेमवर्क, अगर कंपनीज एक्ट की बात करें तो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस रीड विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. बैंक की बात करें तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट रीड विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो एडा प्रोविजंस रीड विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज कॉमन फॉर ऑल काइंड ऑफ एंटिटीज. इंडेस और एएस इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं है, दे आर कॉमन, और वो प्रिंसिपल्स आपको बता रहे हैं. अब वो बताते हैं कि भाई आपने इस तरह से रिकॉग्नाइज करना है आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर रेवेन्यू को, और आपने उस तरह से रिकॉग्नाइज किया हुआ है. इन्वेंट्री को इस तरह से मेजर करना, आपने उस तरह से मेजरमेंट की हुई है. इस तरह से क्लासिफाई करना, आपने वो भी किया हुआ है. डिस्क्लोजर्स प्रॉपर दिए हुए हैं जिस तरह से चाहिए, और प्रेजेंटेशन जिस तरह से चाहिए वो भी की हुई है. तो इसका मतलब आपके 5 के 5 एलिमेंट जिस तरह से बैठे होने चाहिए इन 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, वो बैठे हुए हैं. अगर वो नहीं बैठे हैं, अब हम इस एस्पेक्ट पे आते हैं, वो नहीं बैठे हैं, उस तरह से उनकी मेजरमेंट नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए, उस तरह से उसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग नहीं हुई जिस तरह से होनी चाहिए, तो हम इसको ये कहते हैं कि ये मिस स्टेटमेंट है. मिस स्टेटमेंट को हमारा स्टैंडर्ड किस तरह से डिफाइन करता है कि एनी इंफॉर्मेशन or the omission of the information which should be as per the framework and which
विच इज देयर। अगर इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है तो वो मिस स्टेटमेंट है। अब वो कहता कोई भी डिफरेंस है, उसमें एक वर्ड है सर, एनी डिफरेंस बिटवीन दी अमाउंट और डिस्क्लोजर्स विच इज रिक्वायर्ड एंड विच इज एक्चुअली इज। तो अब मैं कहता हूं इस तरह की एनी का जब उन्होंने वर्ड यूज किया तो एनी को मैं अंडरलाइन करूंगा कि एनी का मतलब हो गया रिस्पेक्टिव ऑफ एनी अमाउंट। तो अगर कोई भी ₹1 का डिफरेंस भी है तो वो मिस स्टेटमेंट है। तो अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है फिर तो प्रैक्टिकली, तो उसमें एक सेकंड टेस्ट लगाते हैं सर मैटेरियलिटी का, कि ये जो मिस स्टेटमेंट है ये क्या मैटेरियल है। अब मैटेरियलिटी कैसे हम करते हैं, मैटेरियलिटी हमारी कंट्री में प्रिंसिपल बेस्ड है, रूल बेस्ड नहीं है। हालांकि बिग फोर हमारी रूल बेस्ड लेके चलती है, 1% ऑफ द टर्नओवर, 2% ऑफ द एसेट्स अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री की जहां पर कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है तो एसेट्स का बेस लेती है, पीपी का बेस लेती है। टर्नओवर बेस है तो 1% ऑफ द टर्नओवर, 2% ऑफ द टर्नओवर, एंड इन सम एंटिटीज इवन दे आर टेकिंग द बेस्ड ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस आल्सो, कि उसका 1%, 2% और 5% मैटेरियलिटी के लिए। लेकिन हमारे स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं कि इंफॉर्मेशन कम मटेरियल है, एनी इंफॉर्मेशन मिस स्टेटमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन और ओमिशन ऑफ द इंफॉर्मेशन इज मटेरियल इफ इट कुड इंपैक्ट द इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ द यूजर्स ऑफ इट, जिससे आपका व्यू चेंज हो जाए। कोई ऐसी मिस स्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जिससे आपका व्यू का मतलब ऐसा नहीं कि प्रमोद जैन साहब का व्यू चेंज हो जाए या गोपाल जी का व्यू चेंज हो जाए, क्लास ऑफ यूजर्स का, जो इकोनॉमिक यूजर्स हैं उनका क्लास ऑफ यूजर्स का व्यू अगर चेंज हो जाता है तो वो इंफॉर्मेशन मटेरियल है। और अगर वो कोई मिस स्टेटमेंट मटेरियल है तो ऑडिटर को कॉल लेनी है। और कोविड की वजह से मैं आपको बता रहा हूं बहुत सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसे होंगे जो मटेरियली मिस स्टेटेड होंगे, जिसमें नॉर्म्स फॉलो नहीं किए जाएंगे, जजमेंट्स उस तरह से नहीं होंगे जिस तरह से स्टैंडर्ड चाहते। तो ऑडिटर को क्या करना है सर, अब ऑडिटर को यही कॉल लेनी है। अब मैं सीधा पहले रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की बात कर लेता हूं कि अगर क्लीन ओपिनियन आप दे रहे हैं तो 700 के हिसाब से देंगे। तो एक बार मैं कहीं साउथ में था तो उन्होंने कहा 700 स्टैंडर्ड आ गए, तो मैंने कहा सर ऐसे तो मैंने 4410 भी देखा हुआ है। तो बोले अच्छा 4-5 हजार स्टैंडर्ड आ गए और हमें पता ही नहीं चला। तो कई बार थोड़ा सा लाइटर साइड में बात करता हूं लेकिन बड़ा तकलीफ होती है सर कि ये हमारे रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स पेरेंट्स स्टैंडर्ड है रिपोर्टिंग के 700 705। तो मैं यही कहता हूं कि एज फार एज रिपोर्टिंग इज कंसर्न बाय द ऑडिटर्स, टू स्टैंडर्ड्स आर द पेरेंट्स स्टैंडर्ड 700 और 705। 700 जब हम देखते हैं कि हमारे पांचों एलिमेंट उसी तरह से बैठे हुए हैं जैसे एएस मांग रहे हैं, जिस तरह से हमारा फ्रेमवर्क मांग रहा है, तो हम अपनी क्लीन ओपिनियन फॉर्म करते हैं। लेकिन अब देखते हैं अगर मटेरियल मिस स्टेटमेंट है इसके अंदर which could not be addressed by the management, तो ऑडिटर को कॉल लेनी होती है सर क्या, कि उसको अपनी ओपिनियन मॉडिफाई करनी पड़ती है। पहले हम केवल क्वालिफाई वर्ड यूज करते थे, क्वालिफाई नहीं है, मॉडिफाई है, ओपिनियन को मॉडिफाई करना है। तो मॉडिफाई कैसे करना है, 3 तरह से करना है। मॉडिफिकेशन कुड बी इन द 3 फॉर्मेट्स, या तो वो क्वालिफाइड होगी, या वो एडवर्स होगी, और या डिस्क्लेमर होगा। अब इन तीनों में फर्क क्या है, बहुत सिंपल है समझना। क्वालिफिकेशन क्या है कि किसी भी एनी अमाउंट, उसमें एक टेस्ट लगाना है कि क्या ये मिस स्टेटमेंट है। हमने पहला टेस्ट लगाया, यस मिस स्टेटमेंट इज देयर। फिर मैंने सेकंड टेस्ट लगाया, क्या ये मटेरियल है मिस स्टेटमेंट, यस मटेरियल है। थर्ड टेस्ट एक और लगाते हैं सर कि क्या इसका इंपैक्ट लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड को हम परवेसिव कहते हैं टेक्निकली। तो अगर उसका इंपैक्ट लिमिटेड है, तो हम क्या कहते हैं कि एक्सेप्ट दिस आइटम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर। सपोज इन्वेंट्री को हम एग्जांपल लें, और इन्वेंट्री में अगर वो एट कॉस्ट स्टेटेड है अंडर एनी रीजन, और ऑडिटर कहता है इसको एनआरबी इसकी कम आ रही है तो एनआरबी पे होना चाहिए, और मैनेजमेंट उसको नहीं मानता है किसी भी वजह से, तो अब आप इंपैक्ट देखते हैं उसका इंपैक्ट कितना है। आपने इंपैक्ट कैलकुलेट करा लिया कि पता लगा आपकी जो भी 2 करोड़ की बैलेंस शीट में 10 लाख का इंपैक्ट आ रहा है, तो ऑडिटर उसकी कॉल लेगा कि ये मटेरियली मिस स्टेटेड है इन्वेंट्री। ऑफ कोर्स 10 लाख रुपए से इसका प्रॉफिट ओवर स्टेटेड है और 10 लाख से इन्वेंट्री भी ओवर स्टेटेड। वन कैन से कि एक्सेप्ट दिस आइटम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर। लेकिन अगर इसका इंपैक्ट परवेसिव है, अब परवेसिव कैसे होगा कि अगर यही इन्वेंट्री, टोटल हमारा एसेट्स का साइज 100 करोड़ है और इन्वेंट्री आइटम 80 करोड़ है, और उसी इन्वेंट्री का वैल्यूएशन प्रॉपर नहीं है और बहुत ज्यादा वेरिएशंस हैं, या नंबर ऑफ आइटम्स कुड बी देयर, या तो सिंगल एक आइटम ऐसा है विच इज
proportionately higher in the balance sheet or P&L, or there are number of items which together have the heavy proportion of the total asset size of the liability side of the financial statement, तो आपका impact pervasive हो जाएगा. अभी सभी लोगों ने बैंक ऑडिट किया, बड़ी जल्दी से समझ में आ जाएगा. आप बैंक ब्रांच ऑडिट शुरू करते हैं, 3% का एनपीए डिक्लेयर्ड है, आपने 1% का और निकाल दिया ड्यू टू ऑडिट, 4% हो गया, 1% की एमओसी पास हो गई. एमओसी भी, अब दो सिचुएशन है, एमओसी पास हो गई और एक है एमओसी पास नहीं हुई. मैं ये सिचुएशन लेकर के चलता हूं कि एमओसी पास नहीं हुई, मैनेजमेंट ने एग्री नहीं किया, एमओसी नहीं बनी, तो इसका इंपैक्ट आप कहेंगे लिमिटेड है. लेकिन अगर यही 3% से एनपीए बढ़ के आपके ऑडिट से 10% या 12% हो जाता है किसी ब्रांच में, तो उसका इंपैक्ट आप लिमिटेड नहीं कहेंगे, उसका इंपैक्ट परवेसिव हो जाएगा. तो अगर परवेसिव इंपैक्ट है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम क्या लिखते हैं कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट रिप्रेजेंट द ट्रू एंड फेयर व्यू. तो क्वालिफिकेशन का और एडवर्स का ये फर्क है. अगर इसको मैं थोड़ा सा बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज में बताना चाहूं जैन साहब, तो उसको हम ऐसे बताते हैं कि एक बंदे का एक्सीडेंट होता है, उसके एक हाथ में फ्रैक्चर होता है, अब उसको मेडिकल रिपोर्ट अपनी देनी है अपने एम्प्लॉयर को या किसी को, भैया फिटनेस की, तो वो देता है डॉक्टर रिपोर्ट कि एक्सेप्ट द फ्रैक्चर इन सच एंड सच बोन द पर्सन इज हेल्दी, राइट. उसने बता दिया कि भाई ये आइटम छोड़ दो, बाकी सब ठीक है. अब दूसरी तरफ दूसरा एक्सीडेंट होता है, उसमें क्या होता है कि उसको ब्रेन हेमरेज हो जाता है, बंदे को हार्ट वॉल्व उसका डैमेज हो जाता है, द पर्सन इज ऑन द वेंटिलेटर. अब उसका मगर डॉक्टर ये लिखता है कि भाई ये 3 सिचुएशंस को छोड़ के पर्सन इज हेल्दी. सर प्रैक्टिकली वी आर सीइंग सच काइंड ऑफ रिपोर्टिंग इन द मार्केट. अगर बात करें लिस्टेड कंपनीज की, आपको पता लगा 30 क्वालिफिकेशन मिलेंगे और फिर लिखेंगे एक्सेप्ट द अबव आइटम्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ट्रू एंड फेयर, which is grossly wrong. और इसके इंपैक्ट परवेसिव है, और आप कह रहे हैं कि मतलब जहां गोइंग कंसर्न आपकी ट्रबल में आप कहोगे एक्सेप्ट दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर, तो उस केस में आपकी केवल और केवल एडवर्स ओपिनियन बनती है. थर्ड एक सिचुएशन आती है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन की, वो केवल उस केस में बनती है जो अभी जैन साहब के साथ हम लोग डिस्कस कर रहे थे. इफ वी आर नॉट इन ए पोजिशन टू गेट द सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, उसमें मैं जैन साहब के साथ ऐड करना चाहूंगा इस पॉइंट को कि सर अगर हमें एविडेंसेस नहीं मिले, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, एंड वी आर नॉट इन ए पोजीशन टू ओपाइन, तो उस केस में डिस्क्लेमर ही बन सकता है. फिर तो डिस्क्लेमर देना पड़ेगा कि वी कुड नॉट, वी आर नॉट इन ए पोजीशन टू गिव एनी काइंड ऑफ ओपिनियन. तो ये इस तरह की सिचुएशन, अगर हम सत्यम स्कैम के बाद की 2 या 3 बैलेंस शीट देखें तो ऑडिटर्स ने डिस्क्लेमर्स दिए हैं, बिकॉज ऑल द रिकॉर्ड्स हैव बीन सीज्ड एंड दे वर विद द डीआरआई एंड ऑल द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, एंड ऑडिटर्स वर नॉट गेटिंग दोस काइंड ऑफ एविडेंसेस, तो उन्होंने डिस्क्लेमर दिया. तो डिस्क्लेमर वाली सिचुएशन 2 तरह से आ सकती है. एक है कि मैनेजमेंट इंपोज्ड हो, कि मैनेजमेंट नहीं देना चाह रहा हो आपको, और सेकंड है सर्कमस्टांसेस इंपोज कर रहे हो. सर अब मैं जैन साहब के उस क्वेश्चन का आंसर इनडायरेक्टली देना चाहता हूं कि अगर मैनेजमेंट इंपोज सर्कमस्टांसेस हैं तो हमारे सारे के सारे स्टैंडर्ड कहते हैं कि ऑडिटर्स को क्विट करना चाहिए उस सिचुएशन में, राइट सर. और अगर सर्कमस्टेंशियल एक्सटर्नल फैक्टर से हैं, जैसे कोविड की वजह से या कोई और जो मैनेजमेंट के बस में नहीं है, अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास रिकॉर्ड सीज है तो मैनेजमेंट के बस में नहीं है, और ऑडिटर को अगर उस सर्कमस्टांसेस में अपनी रिपोर्ट देनी है कि नहीं हमें तो जी इमीडिएट चाहिए कहीं की फाइलिंग के लिए किसी भी एन नंबर ऑफ रीजन से, तो उसमें मैनेजमेंट का कोई रोल नहीं है. तो हालांकि आएगा उसके, तो उस केस में क्विट करने की जरूरत नहीं, उस केस में डिस्क्लेमर ऑडिटर दे सकता है. तो ये 3 तरह की ओपिनियन आती है, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर. एक और हमारा जो स्टैंडर्ड बहुत मेजर प्ले करेगा इस बार 701 के अलावा 706, which talks about matter paragraph and other matter paragraph. और जैन साहब मैं अदर मैटर पैराग्राफ को ऑडिटर के लिए संजीवनी पैराग्राफ कहता हूं. इसको जरूर यूज करना चाहिए जब भी आपको लगे कि आप कहीं ट्रबल में हैं, कोई चीज आप अपनी, क्योंकि जो ओएमपी पैराग्राफ है और एमपी पैराग्राफ है, इनके बीच के डिफरेंस को समझना पड़ेगा कोविड को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कोविड की वजह से कई चीजें हो सकता आप मैटर पैराग्राफ में लेके आए. मैटर पैराग्राफ और अदर मैटर पैराग्राफ में फर्क क्या है वो समझने की जरूरत है. कोई भी ऐसा मैटर, अकाउंटिंग मैटर, विच इज प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर, ड्यूली डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से है, अकाउंट फॉर किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है.
fundamental to the financial statements as a whole. मैं अगेन कह रहा हूं, प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर या ड्यूली डिस्क्लोज्ड है, फंडामेंटल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए है, तो ऑडिटर क्या कहेगा कि आप काइंडली इस पैराग्राफ को पढ़ लें। एक मैं एग्जांपल लेता हूं सर, पंजाब नेशनल बैंक का मार्च 2018 की पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, उसमें उन्होंने लिखा है मैनेजमेंट ने कि बैंक में एक जेम्स एंड ज्वेलरी बिजनेस से रिलेटेड 14,756 करोड़ का फ्रॉड हुआ, एंड द बैंक हैज मेक द प्रॉपर प्रोविजन एज पर आरबीआई गाइडलाइंस ओवर द 4 क्वार्टर्स। प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर, ऑडिटर को कुछ कहने की जरूरत नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड नहीं है, जिस तरह से होने चाहिए उसी तरह से है, लेकिन ऑडिटर क्या चाहता है कि इस पैराग्राफ को हर कोई पढ़े, स्टेक होल्डर, तो वो उसको ऑडिट रिपोर्ट में लेके आएगा, इन फेजेज ऑफ मैटर पैराग्राफ में लेके आए कि काइंडली रीड पैराग्राफ नंबर सच एंड सच इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एंड सच मैटर, और उसके साथ में लिखा जाता है बट ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन दिस रिगार्ड। इस मैटर पैराग्राफ की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि एक तो पहली चीज तो ये फंडामेंटल होना चाहिए टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज वो, छोटे छोटे मैटर्स को ईओ में लेके नहीं आएंगे, उससे इसका पर्पस डिफीट हो जाएगा। इट शुड बी फंडामेंटल टू दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो डिस्क्लोज है उसके ऊपर एक भी आप एक्स्ट्रा एडिशनल फैक्ट नहीं डाल सकते उसके अंदर सर, और एज ए ऑडिटर प्रॉपरली वहां पर अकाउंटेड फॉर वो प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड हो, तभी वो मैटर ईओएम बन सकता है, इन फेजेज ऑफ मैटर पैराग्राफ। अब दूसरी चीज पे आते हैं जो हमारे से रिलेटेड है, संजीवनी जिसको मैं कहता हूं, अदर मैटर पैराग्राफ, ओएमपी। ये वो पैराग्राफ्स होते हैं विच आर नोवेयर डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं डिस्क्लोज नहीं होते, और केवल 3 चीजों को डील करते हैं सर स्पेसिफिकली। ऑडिट से रिलेटेड कोई बात आप कहना चाहते हैं, ऑडिटर्स रिपोर्ट से रिलेटेड कोई बात कहना चाहते हैं, या ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज से रिलेटेड कोई बात कहना चाहते हैं, तो उसको आप अदर मैटर पैराग्राफ में डाल सकते हैं। तो इसीलिए इसको इस बार इनवेरिएबली ज्यादातर ब्रांच ऑडिटर्स ने अच्छे से कोविड को यूज किया कि भाई जो जो आई ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर से उन्होंने ऑडिट किए, फिर भी लिमिटेशंस रही, ऐसी बात नहीं कि नहीं रही। हालांकि मैं जैन साहब की इस बात से भी इंडोर्स करता हूं कि अंडर दो सर्कमस्टांसेस टू माय माइंड ओपिनियन क्वालिफाई होनी चाहिए थी, क्योंकि क्वालिफिकेशन के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक सिचुएशन वो होती है कि वंस वी आर गेटिंग द सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, और हम ये कंक्लूड कर देते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड है फॉर पर्टिकुलर आइटम, तो हम कहते हैं एक्सेप्ट दिस आइटम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर। एक सेकंड चीज और आती है सर क्वालिफिकेशन में कि वंस वी आर ऑडिटर्स आर नॉट गेटिंग द सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस एंड दे फॉर्म द ओपिनियन दैट द पॉसिबल इंपैक्ट ऑफ दीज इंफॉर्मेशन कुड बी मटेरियल बट द इंपैक्ट वुड नॉट बी परवेसिव। उसने 2 चीज कंक्लूड कर ली कि इसका इंपैक्ट आ सकता है, पॉसिबल इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन परवेसिव नहीं होगा, तो उस केस में ऑडिटर्स क्वालिफाई करते हैं ओपिनियन को। सर्कमस्टांसेस 2 ही है क्वालिफाई करने की, एक तो एविडेंस आपको मिल गए और दूसरी आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिली। लेकिन अगर ऑडिटर ने ये देख लिया कि हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिली और इंपैक्ट परवेसिव हो सकता है, तो फिर सर क्वालिफाई नहीं होगी, फिर तो डिस्क्लेमर ही होगा, और एडवर्स के लिए हमें एविडेंस चाहिए ही चाहिए। जब तक सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ये नहीं मिलेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैटेरियली मिसस्टेटेड है और परवेसिव इंपैक्ट है, तब तक आप उसको एडवर्स नहीं कह सकते, आप अपनी फाइनल ओपिनियन फॉर्म नहीं कर सकते। तो 706 इस बार कोविड को ध्यान में रखते हुए भी, क्योंकि कई ऐसे ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स हम अप्लाई करेंगे सर, जैसे इन्वेंट्री में करेंगे, कुछ और करेंगे, जहां जहां इंपेयरमेंट की कहीं बात आएगी तो वहां भी कहीं कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं। तो 706 को मैं अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये थोड़ा सा, लॉकडाउन तो नहीं, अब लॉकडाउन खुल गया है, लेकिन ये एक ऐसा टाइम है जो 5 स्टैंडर्ड आप जरूर पढ़ें, 700, 700, 701, 705, 706 और 720। 720 क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है ये आज के टाइम में, और लास्ट ईयर से ये मैंडेटरी है इवन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज पर भी। विच टॉक्स अबाउट कि अगर कोई एनुअल रिपोर्ट के अंदर या बोर्ड रिपोर्ट के अंदर कोई ऐसी बात लिखी है जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इनकंसिस्टेंट है, मैच नहीं कर रही है, या कोई ऐसी बात लिखी हुई है जो ऑडिट के टाइम में आपको आपकी नॉलेज में आई हुई है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है, लेकिन फाइनेंशियल उसमें रिपोर्ट में मैनेजमेंट ने कुछ और लिखा हुआ है, तो उस केस में ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको एड्रेस करना। 720 पहले भी था, लेकिन इसका जो सही इंपॉर्टेंस आया वो 18-19 के फाइनेंशियल ईयर से आया, जब उन्होंने कहा कि आप 720 के बारे में कमेंट जरूर करेंगे, चाहे आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या लिस्टेड कंपनी हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ
अगर आप बात करें ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की, एक बात फिर मुझे यहाँ पे कहनी चाहिए कि पहली बार स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में वेरिएशन किया गया लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनीज के बीच में जैन साहब, जब 701 आया। 701 से पहले कोई सर अलग अलग नहीं था कि ये स्टैंडर्ड इस पे लगेगा ऑडिट करते समय, ये नहीं लगे। 701 एक ऐसा सिंगल स्टैंडर्ड है आज की डेट में विच टॉक्स अबाउट कि ये लिस्टेड कंपनीज पर मैंडेटरी है। तो 701 ने एक डिमार्केशन लाके खड़ा किया। अदरवाइज 720 ने भी कहा कि आप ऑडिट एनुअल रिपोर्ट पे लिखेंगे। तो मेरे कई फ्रेंड्स ने कहा एनुअल रिपोर्ट तो प्राइवेट लिमिटेड में बनती नहीं है। तो मैंने भैया बोर्ड रिपोर्ट तो बनती है, तो आप बोर्ड रिपोर्ट के ऊपर लिखिए कि बोर्ड रिपोर्ट में कोई चीज इनकंसिस्टेंट नहीं है। और इस बार खास तौर से मैं देख रहा हूं कि 30 से 50 या 60 जगह कोविड वर्ड यूज किया है एनुअल रिपोर्ट के अंदर। इट इज द बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर्स टू रीड दोस पैराग्राफ्स कि मैनेजमेंट ने उनमें क्या कहा है, पास्ट से रिलेटेड क्या क्या है और फ्यूचर से रिलेटेड। अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन मैं ये कहना चाहूंगा कि फ्यूचर की ट्रांजैक्शन से ऑडिटर का मतलब नहीं है। ऑडिटर का मतलब वो है जो 31 मार्च को आपकी बैलेंस शीट में आइटम्स बैठे हुए हैं, वो उनका सब्सिक्वेंट इवेंट से क्या इंपैक्ट उन आइटम्स पे आने वाला है, उनकी क्या रियलाइजेबल वैल्यू बनेगी। एक केवल सिचुएशन ऐसी है, देयर इज सिंगल एक्सेप्शन आई कैन से, गोइंग कंसर्न। जब गोइंग कंसर्न किसी की ट्रबल में आती है तो उसमें हम सब्सिक्वेंट इवेंट में अगर नॉन एडजस्टिंग नेचर की भी इवेंट है वो और गोइंग कंसर्न इटसेल्फ इज इन ट्रबल, तो आपको उसके इंपैक्ट लेने पड़ेंगे। दिस इज द ओनली एक्सेप्शन ऑफ AS4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में एडजस्टिंग इवेंट का केवल ये एक्सेप्शन मुझे दिखाई देता है गोइंग कंसर्न वाला, कि अगर गोइंग कंसर्न मान लो आप, मैं कहता हूं 2 अप्रैल को भी कोई इंसिडेंट हुई और ऐसी मेजर फायर हुई कि उसकी गोइंग कंसर्न ही ट्रबल में आ गई, तो वो 31 मार्च को एडजस्टिंग इवेंट नहीं थी। लेकिन चूंकि उसकी जीसी कंसर्न गोइंग कंसर्न ट्रबल में है तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगर गोइंग कंसर्न ट्रबल में है तो करना क्या होता है बेसिकली। अगर हम ये देखते हैं कि ये एंटिटी फोर्सिएबल फ्यूचर में सर्वाइव नहीं करेगी तो इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू टेक द कॉल ऑफ इट और उसको लिक्विडेशन बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने चाहिए, ना कि नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेस पे। So that is why it is the biggest departure from the basic principles. तो गोइंग कंसर्न एक ऐसा इशू है जहां पर अगर कोविड की वजह से गोइंग कंसर्न ट्रबल में आ रही है, क्योंकि जैन साहब थोड़ा सा सोचने लगे तो मैंने कहा अब मुझे बताना चाहिए जीसी वाला पॉइंट, अगर जीसी ट्रबल में आ गई ना सर एंटिटी की, तो फिर तो आपको कॉल लेनी पड़ेगी। फिर तो सब्सिक्वेंट इवेंट क्या, सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शंस का, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू कंसीडर एज ए होल एंड यू हैव टू सेटिस्फाई योरसेल्फ कि अगर ये गोइंग कंसर्न का बेसिस ले रहे हैं तो है या नहीं है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज यही आने वाला है। तो 706 का अदर मैटर पैराग्राफ मैं अपने फ्रेंड से यही कहूंगा कि जरूर यूज करें जब भी जरूरत पड़े। हर सर्कमस्टांसेस में कहीं ना कहीं ऐसी लिमिटेशंस स्कोप पे आ जाती हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हो सकती हैं। जैसे बात करूं एक्सटर्नल कंफर्मेशन की, अगर बात करें आप इसका जो अभी स्कैम हुआ था सॉफ्टवेयर कंपनी का, सत्यम की बात कर रहे हैं सर, PwC एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं ली थी। हाँ राजू की, हाँ वही बात है, राजू की बात है। तो बैंक से एक्सटर्नल कंफर्मेशन ही तो नहीं मंगाई थी टर्म डिपॉजिट्स की। तो टर्म डिपॉजिट की एक्सटर्नल कंफर्मेशन ना लेने से सर 2 साल का अंदर हिसाब किताब बनाना पड़ा। तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन एक कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, और आज के टाइम में अगर एक्सटर्नल कंफर्मेशंस नहीं मिल पाती हैं टाइम लिमिटेशंस की वजह से, n number of services are getting affected, courier services are basically impacted, postal services are impacted। आजकल हालांकि मेल से भी सिस्टम है, बट अगर किसी तरह से एक्सटर्नल कंफर्मेशन आपको सेटिस्फैक्टरी नहीं मिलती है, सेटिस्फैक्टरी मिल भी जाती है उसके बाद सब्सिक्वेंट इवेंट आपकी सब्सटेंटिएट नहीं करती उस एक्सटर्नल कंफर्मेशन को, तो ये बहुत कई ऐसी चीजें हैं जो हमें देखनी पड़ेंगी। और खासतौर से एक स्टैंडर्ड हमारा 240 जो फ्रॉड से रिलेटेड है कि फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं होने चाहिए। और अगर हम फ्रॉड की डेफिनेशन उस स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं सर, इस स्टैंडर्ड को सर मैं बैंक ऑडिट में बहुत यूज करता हूँ। वो स्टैंड कई बार हम लोग फ्रॉड से मतलब समझते हैं कि एसेट्स का एम्बेजलमेंट हो गया तो फ्रॉड माना जाएगा, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड क्या कहता है, इफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड विद द इंटेंशन टू डिसीव द यूजर्स ऑफ इट, इट इज नथिंग बट द फ्रॉड। मतलब आप मटेरियली मिसस्टेट करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट रोजी पिक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं स्टेक होल्डर्स को, गलत पिक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये फ्रॉड है। और अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है तो ऑडिटर्स की बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 240 जिसको ट्रांसपोज कर दें तो 420 बन जाता है, जल्दी याद रहता है, तो उसको जरूर पढ़ें।
240 को जरूर पढ़ें। 240 में बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑडिटर की, अगर इस तरह के कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो वी हैव टू सी। और एक रिटन रिप्रेजेंटेशन की मैं जरूर बात करूंगा, जब भी कहीं इस तरह की कोई चीज आए तो 580, हालांकि नो डाउट हमारी इंस्टीट्यूट उसको नहीं मानेगी, जैसे आप डीसी में बैठे होंगे तो नहीं मानेंगे, नहीं नहीं ये तो 580 के हिसाब से सभी लोग ले लेते हैं, लेकिन कोर्ट में ये चीजें बड़ी प्रिवेल करती हैं सर। रिटन रिप्रेजेंटेशन अगर मैनेजमेंट ने किसी एस्पेक्ट पे स्पेसिफिक ऑडिटर ने मांगी और मैनेजमेंट ने स्पेसिफिक दी हुई है तो इट डज मैटर इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो 580 को मैं अपने फ्रेंड से ये रिक्वेस्ट करता हूँ जरूर यूज करें। 580 को एज ए सैंक्रोसेंट और एज ए स्पिरिचुअल एक्टिविटी मत माने, इसको ये माने कि ये हमारी रेस्क्यू के लिए है इन केस ऑफ नीड। दिस ये सब चीजें ऐसी हैं जो कहते हैं ना कि काढ़ा पीते रहो तो ठीक रहोगे, तो ये काढ़े की तरह है कि जब इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग करती है, जब कहीं हम फंसते हैं तो ये यही डॉक्यूमेंट हमें सेव करते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। चाहे एंगेजमेंट लेटर्स की बात करें 210 की या 580 की, ऑल दीज थिंग्स, उसमें ये हो जाता कि ऑडिटर वर अवेयर, ऐसा नहीं कि ऑडिटर्स वर इग्नोरेंट। इसीलिए उन्होंने रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से मांगी अंडर द सर्कमस्टांसेस एंड मैनेजमेंट पे रिलाई किया उसको। तो ये सब चीजें हैं। बाकी कोई मैं जैन साहब को हैंड ओवर करना चाहूंगा क्योंकि मैं उनको सुनना चाहूंगा, क्योंकि मैं तो रीडर हूं और वो ऑथर है इस समय। ठीक है, बहुत से स्टैंडर्ड्स बोर्ड में बैठे होते हैं तो कई चीजें प्रैक्टिकली डिस्कस होती हैं, क्योंकि मैं देखता था, मुझे जब अपॉर्चुनिटी मिली सर वहां पर बैठने की ईएसी वगैरह में, तो जब भी कोई क्वेरी आती थी सर तो सबसे पहले कितनी भी बार, चाहे पीआर रमेश साहब बैठे हुए या कोई बैठे हुए, बोले एसेट की डेफिनेशन पढ़ो। तो कई बार मैं सोचता था यार रोज एसेट की डेफिनेशन क्यों पढ़ते हैं है? तो वो सीखने वाली चीज है कि सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में घुसने से पहले एसेट की डेफिनेशन पढ़ो क्या है। तो कहते हैं एसेट इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द मैनेजमेंट। अब उन्होंने कहा भाई बंदे ने रोड बनाया सरकारी जमीन पे तो वो कैपिटलाइज होगा या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, उन्होंने कहा ये इस पे कंट्रोल है ही नहीं मैनेजमेंट का, तो ये हमारा फेल हो गया एसिड का टेस्ट। तो ये एसिड टेस्ट, हम उसको एसिड टेस्ट बोलते थे, एसिड टेस्ट की वजह एसिड टेस्ट लगाते थे। तो उन सब चीजों से सीखने की जरूरत है। और मेरी अपने फ्रेंड से ये रिक्वेस्ट है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में घुसने से पहले काइंडली रीड द डेफिनेशन ऑफ दीज 5 टर्म्स ओनली, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड इक्विटी। क्योंकि कई बार हम होता यही है कि अपने बेसिक गजट को भूल जाते हैं पढ़ना। तो जैसे हमारा बेसिक गजट गीता है सर, अगर हम देखें तो हम गीता नहीं पढ़ते कि तो हमें अपने पंच तत्व का पता नहीं लगता। ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर ये 5 टर्म की डेफिनेशन और उनके रिकॉग्निशन प्रिंसिपल्स फ्रेमवर्क में नहीं पढ़े तो एएस पढ़ना बेकार है सर। एएस इज जस्ट लाइक रूल्स, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट हमने कई एक आध बार चोपड़ा सर से पूछा हमने, सर ये फ्रेमवर्क आपने नोटिफाई क्यों नहीं कराया एमसीए में? बोले यार कुछ तो अपने पास रहने दो बोले वो स्टैंडर्ड चेंज करेंगे हम फ्रेमवर्क चेंज कर देंगे। So framework is basically the parent of accounting standards. So with these words, friends, I hand over the dice to our convening team and जैन साहब, क्योंकि मैं चाहूंगा कि इसमें बहुत सारी वैल्यू एडिशन और इनपुट्स उनकी तरफ से मिलने वाले हैं। So let's be ready for that. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, Gopal ji. Thank you, Gopal sir, for such a nice and wonderful session on this impact on your audit of financial statement. Now I request Pramod Jain ji to please take the further deliberation on the today topic. Pramod ji, please. Thank you very much, Rakesh bhai. Rakesh Gupta ji, convener, Pravesh Jain ji, deputy convener, and Gopal ji Agarwal ji, my elder brother and a very excellent speaker. I heard him few years back. सुना तो बहुत ज्यादा था, but personally 1-to-1 सुनना एक सेमिनार में साथ साथ जहाँ पे we both were the speakers. So I was impressed the way he talks about the Panch Tattva and then mixing that, giving the examples through that. So I really wanted that our study circle should benefit out of it. And I also welcome all of our members. All major our members are there, though we cannot see each other in this platform. But yes, I hope you all have enjoyed the deliberation by Gopal ji Agarwal ji. Now taking forward what Gopal ji said, अपन आगे चलेंगे। मैं थोड़ा सा maybe English थोड़ा सा इसलिए ज़्यादा बोल रहा हूँ because I am aware कि we have got a few members more from the southern part of our country. So I'll try, कोशिश करूँगा कि English हिंदी दोनों का mix करूँ। Going straight forward, I'll start with basically a presentation, I would say.
ये मेरी स्क्रीन आ रही है ना राकेश जी? हाँ जी आ रही। सर, वॉल्यूम कम है सर आपका। वॉल्यूम कम है, अब बेटर हुई? हाँ अब बेटर है? हाँ, आप थोड़ी बेटर है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। what we'll be talking about is impact of COVID-19 on audits, और मैं यहीं से आगे चलूंगा बेसिकली। अगर बात करूं, जैसे गोपाल जी अग्रवाल जी ने कहा, यस, पहला मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड देन वी डू द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल on both the things, and we would be discussing the impact of COVID on both, because if there is anything which is not appropriate in the financial statements, then our audit is impacted, and then we have to report accordingly using our standards on auditing. Just to tell कि अभी हमारे कितने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, मैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की बात करूं, ओवरऑल मैं अगर टेक्निकल स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू अश्योरेंस की बात करूं तो 46 है, लेकिन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो 38 है। 38 ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। तो उसका हम लोग वो सभी के लिए एप्लीकेबल है, वेदर इट इज अ लिस्टेड कंपनी, वेदर इट इज अन अनलिस्टेड कंपनी, अ प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, whatever it is, it is the same standards on auditing, and these standards on auditing for the companies have been notified by the NACAS in the central government in the Companies Act 2013. तो ये सबके लिए मैंडेटरी है, राइट? अगर हम बात करें, ये कोविड की वजह से क्या मेरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड्स इन ऑडिटिंग में चेंज आया है? नहीं, देयर हैज बीन नो चेंज। हम बहुत बार ये सोचते हैं कि भाई मेरे को कई क्वेश्चन ये आए कि वेदर देयर इज एनी चेंज इन द ऑडिट रिपोर्ट। नो, देयर इज नो चेंज, बिकॉज देयर हैज बीन नो चेंज इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। So keeping this in mind, we have to use this, whatever we are discussing, what have been discussed by Gopal ji and what we'll be discussing further, that today it is COVID, tomorrow it could be on a single entity, such other natural calamity like a earthquake or a flood or such other thing that he is not able to operate, or he has been devastated by any other natural calamity. तो उस केस में मैं क्या करूँगा? So सिर्फ कोविड की बात नहीं, कोई भी नेचुरल कैलेमिटी अगर आगे भी आए, किसी को इंडिविजुअली भी आ सकती है, ऐसा नहीं सभी को आए। सो कीपिंग ऑल दैट इन माइंड, वी शुड डिस्कस टुडे। अगर मैं कोविड की बात करूं, द इम्पैक्ट जो है, द इम्पैक्ट इफ वी टॉक अबाउट मार्च 1920 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द बिजनेसेस वर क्लोज्ड नियरली फॉर 15 to 20 days मैक्सिमम, राइट? मैक्सिमम इम्पैक्ट आएगा फाइनेंशियल ईयर 2021 में, और कुछ सेक्टर्स में हो सकता है 21-22 में भी आए। सो मार्च 20 में, एक्सेप्ट फॉर माय गोइंग कंसर्न, सब्सिक्वेंट इवेंट्स, इन्वेंटरीज एंड सर्टेन अदर इम्पेयरमेंट्स व्हिच विल बी डिस्कसिंग, मेजर इम्पैक्ट कुड बी इन 2021 जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, एंड सम सेक्टर्स, बिकॉज ऐसा नहीं है सभी सेक्टर को सेम ये इस पे इम्पैक्ट पड़ा है। There could be sector of hospitality, अभी तक होटल्स चालू नहीं हुए हैं, एयरलाइंस अभी थोड़ी थोड़ी चालू हुई है बट फ्रीक्वेंसी इतने नहीं है। My travel and tourism, everyone is avoiding luxury goods, the last thing which one wants to purchase. रियल एस्टेट पे पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आज के डेट में नेगेटिव है, बिकॉज नो वन इज एवरीवन इज ट्राइंग टू रिड्यूस देयर ऑफिस स्पेस। कहते हैं भाई घर से काम हो सकता है, सो व्हाई टू इन्वेस्ट? सॉफ्टवेयर कंपनीज दे आर सेइंग व्हाई शुड वी इन्वेस्ट इनटू द रियल एस्टेट? Let us reduce our office space, reduce our cost, and then go further. So real estate पे buying कितनी आती है? So looking into all these things, we have to see not only for March 20 but 21 also. अब इसमें अगर मैं मेजर बात करूं, तो मेरे को पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो इम्पैक्ट आएगा, that would be depending upon my cost which is there, my revenues, of course, my top line is there. Top line may be reduced to a greater extent, but along with the top line, मेरा fixed cost और variable cost क्या है? मेरा जो variable cost है, which is directly related to my output, directly, I'm not talking about the other things which is like power, etc., but directly like material, etc.
सो अगर मेरा वेरिएबल कॉस्ट कंपोनेंट ज्यादा है तो मुझे हो सकता है इतना इम्पैक्ट ना है, बट अगर मेरा फिक्स कॉस्ट हायर है then there could be so many issues. मेरे फिक्स कॉस्ट कौन कौन से हो सकते हैं? इंटरेस्ट, रेंट, मिनिमम पावर का बिल, माय वेजेस, सैलरीज व्हिच आई हैव टू पे. एक simple सा example what we take, suppose our client is there who has taken some premises on hire, and to do the business he has taken the loan also. और मॉल के अंदर था, अभी तक मॉल खुले नहीं है, और मॉल खुलने के बाद बहुत सारे इश्यूज हैं. अभी खुले हैं बट इतने महीनों का रेंट, उसके ऊपर इंटरेस्ट, would he be able to continue? In such cases we'll have to see, because the impact of COVID is not yet final, अभी भी चल रहा है. It might take say 1 or 2 months more. So one has to be very careful. One has to be careful. आपको हर क्लाइंट के केस में देखना है. There could be, I would say, major cases where you see that yes, there is an impact, but the impact is not that major. Impact may not be that major because certain industries, certain sectors are hit, but many sectors have not been hit. Maybe future, if you talk about, yes, my revenues would be going down, that is a separate, but again, it would again depend whether it is my fixed cost or the variable cost. That's why we are seeing so much retrenchment in my employed person. आवाज आ रही है? प्रमोद जी, हाँ प्रमोद जी, हाँ, सर एक अपना वीडियो ऑन कर लो. वीडियो ऑफ है आपका? क्या कह रहे हैं? आपका वीडियो हाँ, आप ठीक है, ठीक है सर, अब ठीक है. नहीं नहीं, वो दोनों इकट्ठे नहीं चलते हैं. अच्छा, इकट्ठे नहीं चलते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है जी. कोई बात नहीं, पर वो अभी स्क्रीन आ रही है ना? हाँ, स्क्रीन नहीं आ रही सर, स्क्रीन चली गई अब. हाँ, तो लेट द स्क्रीन गो, कोई बात नहीं. ठीक ठीक मैं उसके बाद मेरा चेहरा कोई नहीं सब में, ठीक है. राइट? जी जी, ठीक है सर. सो यस, मेरे को अपने हर क्लाइंट के ऊपर, लेट अस गो व्हाट गोपाल जी सेड, गोइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड टू माय एसेट साइज. मैं गोइंग कंसर्न असेसमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि गोपाल जी ने तो बोला ही बोला. सेकेंडली, अभी हमने जो डिस्कस किया कि हाउ वील हैव टू सी ईच एंड एवरी कंसर्न, ईच एंड एवरी क्लाइंट, कि क्या उसका काम बिल्कुल खत्म हो गया या हो जाएगा, और अगर कंटिन्यूइंग है. लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि इन फॉर दिस थिंग ऐसे 570 गोइंग कंसर्न, इसकी आप अपनी चेकलिस्ट कंप्लीट करके अपने पास डॉक्यूमेंटेशन मार्च 20 एंड मार्च 21 बोथ रखिएगा. वैसे तो एवरी ईयर इट इज मैंडेटरी, बट दिस पीरियड बी मोर केयरफुल, दिस पीरियड बी मोर केयरफुल एंड मेक योर फाइनल कंक्लूजन दैट द कंपनी और द एंटिटी इज अ गोइंग कंसर्न. ठीक है? नाउ गोइंग टू द प्रॉपर्टी, मेरे फिगर सेट्स में क्या फर्क पड़ेगा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में क्या फर्क पड़ेगा? मेरे पास एसेट है. द ओनली थिंग इज इफ दैट एसेट इज ऑलरेडी देयर एंड देयर इज एन इम्पैक्ट ऑन दैट एसेट कि वो 3 महीने 4 महीने बंद रही, तो उसकी वर्किंग में फर्क पड़ जाएगा, उसकी एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ में फर्क पड़ जाएगा. इनकम टैक्स में तो कोई इश्यू नहीं है, वो तो ब्लॉक में चला गया, ब्लॉक में चला गया तो डेप्रिसिएशन मिलता रहेगा. बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट माय ऑडिट, if my useful life has changed, then as per AS 10, I have to recalculate the useful life and depreciate over the remaining useful life. Client to client vary करेगा, client to client vary करेगा. जिसकी मशीनरीज बंद होने पे इम्पैक्ट मेजर है, तो उनको उसकी यूजफुल लाइफ को दोबारा असेस करना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ, और रिमेनिंग पीरियड के अंदर they will have to depreciate, right? Then Gopalji also said that it is not only about my fixed assets, property, plant and equipment, but my intangible assets like goodwill or IPR, which is recognized in the books. Self-generated we cannot, but yes, if there are acquired to merger amalgamation or purchased some IPR, goodwill, whatever it may be, in that case, if due to such natural calamity there is an effect on that, then I have to impair that
और amortize my intangible asset over the remaining useful period, मेरे को उसका impairment करना पड़ेगा। अब बात ये आएगी कि मेरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि करंट इन्वेस्टमेंट्स को तो मेरे को वैसे ही वैल्यू करना पड़ता है, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर, बट जो नॉन करंट है, जो लॉन्ग टर्म है, अगर हम देखेंगे कई शेयर्स ऐसे हैं जिनके की रेट वर have come down to a drastic extent. Now if that has come down to a drastic extent, do we say that it is what हम normally कहते हैं permanent diminution the value, but it is not permanent, it is other than temporary diminution the value of the investment. क्योंकि आज की उस वक्त तो मेरे शेयर प्राइसेस 30, 40, 50% भी कई जगह डाउन हो गए, आज वो कितने रिकवर कर गए, या इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी कुछ डिफरेंस होता है। सो अगर वो मेरा डिमिनिशन, अगर मेरा वो रिडक्शन इन दैट वैल्यू एज ऑन 31st March is not permanent, it is not other than temporary, then we should not provide for the provision for the diminution of the value of the investment. And it could be again, मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट किया किसी और प्राइवेट कंपनी के अंदर या किसी और पार्टनरशिप फर्म में, एंड दैट इज अ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट मान लीजिए, और उस एंटिटी का गोइंग कंसर्न खत्म हो गया, उसका गोइंग कंसर्न नहीं रहा, सो इन दैट केस अगेन यू हैव टू असेस एंड देन प्रोवाइड फॉर द प्रोविजन, you know, then provide for the provision under the books of accounts. Again, I am telling it is not merely March 20, it would be March 20 as well as March 21. इन्वेंट्रीज पे तो काफी डिस्कस किया गोपाल जी ने। अब इन्वेंट्रीज की अगर मैं बात करूं तो एक वो वैल्यूएशन में काफी इशू आ रहा है। वैल्यूएशन में इशू ये आ रहा है कि 31 मार्च को नेट रियलाइजेबल वैल्यू कहां से ले। अगर आपका अप्रैल में कोई सेल, नॉर्मली हम क्या करते थे, अप्रैल में जो सेल हुआ, जो भी नेक्स्ट सेल हुआ उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू ले लेते थे, बट यहाँ पर पहले तो मैनेजमेंट को असरटेन करना है, कॉस्ट तो उसको पता ही है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसी है 31 मार्च को, my market rate or some on the net or whatever it may be. So if it is a major diminution, then I have to actually compare as well 31st March and then value as per the cost or cost and NRV, the lower of cost and NRV. फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो पाया। अगर मैं प्रैक्टिकल हूँ, एसएमपी प्रैक्टिशनर्स कितने फिजिकल वेरिफिकेशन में जाते हैं? बिग फर्म्स तो जाती हैं। एनसपीज में हम लोगों में से कितने लोग जाते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन के? जाना चाहिए। अगर नहीं गए तो आप आज की जब भी आप मिले तब फिजिकल वेरिफिकेशन कराएं, और अगर आप फिजिकल वेरिफिकेशन कराएं तो आप कह सकते हैं कि जी मैं तो वहां पर्सनली प्रेजेंट नहीं था, या आपने इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मोड से फिजिकल वेरिफिकेशन कराई, तो व्हाटएवर इज द फैक्ट रिपोर्ट अकॉर्डिंगली। Recently when I was having one of the discussions on the new Caro and all those things, I categorically stated that it has to be कि अगर मैं कारो में या ऑडिट रिपोर्ट में कोई अपने कमेंट देता हूं तो जरूरी नहीं है कि वो मेरा एडवर्स ही हो। दैट कमेंट हैज टू बी अ फैक्ट। मान लीजिए कि मैंने किसी पर्सन से लोन ले लिया जो कि शेयर होल्डर डायरेक्टर नहीं है, तो हम ऑडिटर्स क्या सोचते हैं उस केस के अंदर, जब हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं कारो में तो उसको कैसे अवॉइड करें? बट the fact is he has taken a loan, though you have to report the fact. Similarly, अगर मान लीजिए उसका फिक्स्ड एसेट रजिस्टर नहीं है, या इन्वेंटरी की वैल्यूएशन नहीं की, या फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू का फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कराया, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का, तो it is not that it is going to be adverse. You say it has not been done. So whatever is fact, if the management is in writing is saying they have not done, how the auditor can say that he has done? So one has to be very, very careful writing this. Assessment of estimates as per AS4, because now there would be so many estimates, which the accounting estimates which we make as of 31st March for making the provision and other things. So there could be an impact due to COVID. So we have to recalculate that. We have to reassess that. Even occurring after the balance sheet date, वो हमने गोपाल जी ने डिस्कस कर लिया. So I have to, लेकिन ये दो चीजों की बात करनी पड़ेगी. प्रोविजन फॉर इम्पेयरमेंट इन ट्रेड रिसीवेबल, ये नॉर्मली मैंने देखा है कि हम लोगों के जो एसएमपी प्रैक्टिशनर्स की ऑडिटेड बैलेंस शीट्स हैं,
उस बैलेंस शीट में मैंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बहुत रेयर देखा, चाहे वो लिटिगेशन में हो, वो सीधा ही उसको राइट ऑफ करते। हाउ इज दैट? When there is a litigation, or we know that there's my debtors, we are talking about trade receivables. Yes, trade receivables, debtors हम synonymous use कर रहे हैं। वो मेरे 2 साल से पेंडिंग है, 3 साल से पेंडिंग है, उससे बात करते तो कहते पैसा आ नहीं रहा, and still we are not making a provision. Then how it is true and fair? And due to COVID, again we know that the other person has gone bankrupt and he is not going to resume his operations very soon. So is the provision not required? Is the impairment of trade receivables not required? Or for that matter my loans and advances, जहां पर दूसरी पार्टी ने फोर्स मेजोर का भी क्लॉज एप्लीकेबल कर दिया, okay, I am not going to pay. So does that not become doubtful? So is the provision not required? In my view, yes. In my view, yes. So you have to take care that in such case I have to be very careful for my advances, loans and advances which I have given. See my debtors which have been given, हर चीज बैंक के एंगल से नहीं देखनी कि उसने लोन ले रहा है बैंक से, तो बैंक को क्या बताएंगे, ऑडिटर को अपना फैक्ट जरूर देखना है। ये हमने कई बार अपने स्टडी सर्कल में। Then another thing is my deferred tax asset. ये गोपाल जी ने भी बोला, अगेन आई रिपीट, पहली बात तो ये कि डेफर्ड टैक्स एसेट को रिकॉग्नाइज करना 10 बार सोच के करो, बिकॉज it has to be on some virtual certainty that it would be utilized, my asset would be utilized. अब उसने जो डेफर्ड टैक्स एसेट किस लिए किया कि मेरे लॉसेस हैं, मेरे पास ऑर्डर्स हैं, फ्यूचर के अंदर ये मेरे होंगे तो मेरा प्रॉफिट होगा तो उससे एडजस्ट हो जाएगा, तो मैं डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट करूंगा। एंड ऑडिटर एग्रीड। नाउ व्हाट अबाउट कोविड? क्या मेरे ऑर्डर्स हैं अभी, ये ऑर्डर्स कैंसिल हो गए, क्या आगे कंटिन्यू रहेंगे? सो इन दिस कोविड थिंग, apart the 2-3 things, one is my deferred tax asset if it is there. हो सकता है हमारे मैक्सिमम क्लाइंट्स में deferred tax asset ना हो, बट अगर है तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दिस। अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आया मेरे पास, फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंसेस। उन्होंने कहा सर हमने दिसंबर में लिया था, दिसंबर में हमने परचेज किया, दिसंबर के अंदर जो मेरा परचेज था उस वक्त मेरा जो डॉलर था 71 रुपीज, राइट, और आज की डेट के अंदर 31 मार्च के अंदर वो आ गया 75 रुपीज। सो जो टोटल डिफरेंस है वो 4 रुपीज का डिफरेंस आ गया, और मेरे पास तो समझ लीजिए $5 लाख है, तो 20,35,000 का लॉस। तो क्या मैं उसको 31 मार्च को रिकॉग्नाइज करूं? करना ही पड़ेगा। यहाँ तो हमने सिर्फ यहाँ पे हमने सिर्फ $5 लाख की बात कही है, कहीं कहीं तो हो सकता है कि $5 करोड़ दिसंबर में खरीद लिया। So one has to be careful. This foreign exchange differences, whether it's a profit or loss, there would be a huge swing in my profits. So I have to be very careful in making a provision thereof, and later on comparing my GP or NP ratio for the past few years. I have to be very careful and categorically see that these are the items which may be not extraordinary, but yes, interpolation, हमारे को extrapolation use करना पड़ता है उस ratios के अंदर। Yes, this also गोपाल जी said, termination benefits क्या है, long term employee benefits क्या है। अब यहाँ पे मेरा जब एक्चुअरियल की प्रोविजन के हिसाब से मेरे वैल्यूएशन हुई, और हम जो एस्टिमेट जो हम उसमें यूज कर रहे हैं, जो भी हमारे उसके अंदर टर्म्स हैं कि मेरा इंक्रीमेंट ही होना है हर साल, और इस साल तो सब देख रहे हैं कि इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, उल्टा रिडक्शन हो रहा है। मेरा एट्रिशन रेट, हम कह रहे हैं हमने इतने एम्प्लॉयज निकाल दिए, और वो कह रहे नहीं जी हमारा एट्रिशन रेट तो पहले भी 2% था, आज भी 2% है। सो माय ऑल दोज estimates have to be rechecked, my provision has to be made accordingly। जो टर्मिनेशन के अंदर हो सकता है मेरा इम्पैक्ट ग्रेचुइटी का, लीव इनकैशमेंट का बहुत मेजर आए, सो आई हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन मेकिंग अ प्रोविजन फॉर दिस फॉर मार्च 20 and 21 बोथ। 21 में तो मोस्ट प्रोबेबली इट वुड बी ऑलरेडी provided in the, not provided, paid in the books,
in such cases. But yes, those rates have to be very careful. My attrition rates, my year of service projected, this I have to be very, whatever all the conditions which are there, I have to be very careful. Provisions, yes, provisions की requirement जो मेरे अब कई contract मेरे onerous हो गए होंगे. So onerous contract, it may be due to my force majeure or even otherwise. कि मेरे onerous contract ऐसे हैं कि उसको मेरे को fulfill करने के बजाय छोड़ने की cost भी बहुत ज़्यादा है. तो मेरे को उसके हिसाब से उसके provisions करने पड़ेंगे. So I have to be careful for that. मेरे लीज टर्म रिवाइज हुए. अभी एक क्वेश्चन भी था मेरे ख्याल से प्रवेश जैन जी का, मेरे लीज टर्म्स रिवाइज हुए तो क्या मेरे को अकाउंटिंग करना पड़ेगा. नाउ हियर माय लीज टर्म्स ऑनर्स हुए. प्रवेश जी का क्वेश्चन ये था कि मेरा क्लाइंट जो है उसने बहुत सारे प्रेमिसेस रेंट पे दे रखे हैं, उन सबको कंसेशन दिया है मार्च अप्रैल का. तो उसकी अकाउंटिंग सिंपल है, जितना कंसेशन दिया है मार्च का जो है, मार्च के अंदर मेरी उतने की इनकम कम होएगी और अप्रैल में अप्रैल से कम हो जाएगी. आई हैव टू रिड्यूस माय रेंट ओनली. राइट, जीएसटी का इंपैक्ट मैं नहीं जानता, बट दोनों वे से जिसने रेंट दिया है और जो ले रहा है, दोनों के जो भी मेरे कंसेशंस हैं या मेरे जो भी टर्म्स, वेरिएशन इन द टर्म्स हैं, that has to be duly accounted, right? Because this would be again in the malls, still there is currently a huge problem, or even all the commercial shops, I would say, because the rents are huge. So what are the change terms? So even for making a provision in the lease, what I say, as per my AS, if I have to do it on a straight line, then I have to recalculate as per my amended terms. So I have to be careful out there. Due to force majeure and onerous contracts, there would be litigation. So take care of a proper disclosure in the contingent liabilities, making a provision or contingent liabilities both. Now this also Gopalji said about the borrowing cost, that suppose for this 4 months मेरा एक plant बन रहा था, वो plant बन रहा था पर 4 महीने से, ये 3 महीने से, ये 2 महीने से मेरा वो plant बनना रुक गया due to COVID. जब plant बनना रुक गया तो as per my AS 16, that period borrowing cost should not be capitalized and charged to revenue. But under income tax, it is not allowed as a deduction. So you have to make an adjustment in the computation because it is not allowed as per section 36(1)(3) as well as ICDS. ICDS 36(1)(3), dono they are same only, right? So it has to be made, adjustment has to be made for this. So I have to take care of this also. Expected loss in the construction contract. मेरा construction contract चल रहा है, अब मेरा due to delay in the project due to COVID, there is instead of profit there is an expected loss. My AS7 says that you have to recognize that expected loss, so you have to recognize in the books of accounts. But under income tax, it is not allowed. It would be allowed only when the contract is completed or the actual loss is there. So again, the adjustment would be required in the computation, but in the balance sheet, you have to comply with the accounting standard. Right? Plus, अगर मेरे मान लीजिए कोई ऑपरेशन डिस्कनेक्ट, मेरे 4 यूनिट्स थे और एक यूनिट ऐसा है जो अभी भी कंटिन्यूअस जोन में और जो खुलने की उम्मीद ही नहीं, और मैंने डिसाइड कर लिया कि भैया यहाँ तो बहुत ज्यादा है, यहाँ तो खुलेगा भी नहीं, तो उसको डिसकंटिन्यू करूंगा, तो मेरे को AS24 यूज करते हुए उस डिसकंटिन्यूड डिस्क्लोजर, उसके प्रॉपर अकाउंटिंग करनी पड़ेगी और उसका डिस्क्लोजर करना पड़ेगा. राइट? मेरे को एक मेजर जो चैलेंज लगता है वो ये लगता है, how do the clients normally do? They say they arrive at the inventories by comparing the GP rate and the NP rates. So now when the GP and NP rates would be calculated,
बिकॉज जैसे अगर मेरा जीपी में पहले 10% था, मेरा 7% रह गया, तो इनकम टैक्स से छूट नहीं आ जाएगा, इसको 10% के आसपास क्या इतना वेरिएशन क्यों? और यहाँ पर मेरे को चेक करना है मार्च 20 नहीं, आई व्हेन आई एम कंपेयरिंग विद 19, 20 and even in 21, all the 3 years would be different because March 20 में तो वेरिएशन कम था, मेरा क्लोजर कम था। आपने कहा जी मैं तो जीपी के बेसिस के ऊपर इन्वेंटरीज और सारे प्रॉफिट्स रखता हूँ, और इनकम टैक्स वाला कहेगा यार आपका बिजनेस बंद रहा, सब कुछ रहा, फिर भी आपका जीपीएमपी मेंटेन्ड है, आइदर यू आर इन फार्मा बिजनेस or say ready to eat biscuits and others where the sales was doubled or tripled. It was a normal thing and still the it was maintained. What is there? So both the things have to be very careful. So when you are comparing the GP and NP ratio for March 20 and 21 with the previous years, whenever you are doing, please see that what was the impact of such natural calamity. Calculate the ratios, taking that into account, and without taking into account. So both और फिर calculate करके रखिए. Otherwise, it is, and reasons पूरे बना के रखिएगा. Otherwise, at the later stage there could be an issue, or there could be what essay 240 what Gopal ji said, just to show that they were in the profits or to achieve certain targets, the profits are manipulated. So again, that is a fraud. So auditor has to be very careful in such situation. Comparability ratio, this I have discussed. Auditor's other focus area, of course, is my MSME reporting. I hope सबने फॉर्म MSME 1 तो भर दिया होगा, उसकी ड्यू डेट थी 30 अप्रैल कंपनीज के केस में, उसकी कोई एक्सटेंशन नहीं है। चलिए फॉर्म अब भर दीजिएगा, उसकी कोई एक्सटेंशन नहीं है। कंपनी लॉ की जो एक्सटेंशन हुई है उसमें फॉर्म MSME नहीं आता। सेकंड, now MSME says if you are taking the goods or services from an MSME, then you have to pay within 45 days. मार्च 20 तक किसने 45 डेज में पेमेंट कर दी, या करंट पीरियड के अंदर कौन कर दिया? अगर नहीं किया तो सबको पता है इंटरेस्ट एट द 3 times and of the bank rate, and interest is not allowed as deduction. So be very careful. 4 बार अपने सारे क्लाइंट्स, और ये जो what I'm telling is making a provision and disclosure. It is not only for companies, it is for everyone, proprietorship, partnership, everyone. So I have to be very, very careful in the MSME reporting. अभी से बात कर ले, क्लाइंट्स को भी भेज दें MSME का क्या, उनको जगा दें इस चीज के लिए, ईमेल तो भेजें, right? ESI PF delays. Now, what is going to happen? That there were extensions given for ESI and PF delays. So while filling your 3CD, take care that you fill the correct date, the extended dates. And also while reporting into my CARO, when I talk about whether the company is in delay, it is regular in depositing the dues, statutory dues. So this extended period should not be taken as a default or delay. Similarly for my ROC also. So I have to be careful in reporting all such statutory dues, right? ROC का statutory dues नहीं है, but I just mentioned that. Starting with yes, SA 240, what Gopalji also said, just because I have to reach certain targets for some stakeholders, what I'm doing is making variations in my financial statements. Clearly, very, very take care. It is not allowed. SA 240. So I have to see that the definition of fraud includes that, which Gopalji also said. SA 315, yes. Here again, I have to assess the material misstatement and the materiality through. Now here, my materiality could be changing because materiality is taken on the basis of my top line or my profit or an asset base, depending upon what item I am testing. But that is allowed when there is no major variation. अब इस कोविड में तो एक बार सेल ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर आएगी. So I have to recalculate my materiality levels. So I have to be very careful in
this case, right? That was my risk assessment, and this was my materiality planning. Sorry, I mixed the standards. Then, of course, SA 501, Gopalji also said, because Gopalji covered all the major standards, so I'm not giving too much emphasis on, because at the end we will take certain questions also which are there. So specific considerations, audit evidence यहाँ पर सबसे important है. जो गोपाल जी ने भी कहा, बैंक ऑडिट की बात छोड़िए, अब मैं आज की डेट में ऑडिट की बात करता हूँ. When we are auditing now, there are issues. Our staff may not go to all the clients' place. But how much is the impact on collection of the audit evidence? If we have got sufficient appropriate audit evidence, no issues. But if there are restrictions, I have to state whether to make it as an emphasis matter or another matter, depending upon how it is disclosed in the financial statements, which Gopalji has explained very beautifully today. Right? So take care according to that, what evidence I have got, whether there is any restriction on me or not. SA 500, again, my audit evidence, both SA 505, external contribution. This is the point which were not allowed. आप clear cut audit report में लिख दें कि due to this COVID situation, external confirmations were not allowed or were not feasible, whatever it may be. नहीं allow कर रहे हैं या नहीं हो रहा है, जो भी clause है उसके हिसाब से आप अपनी audit report में जरूर लिखते हैं. 540 is my auditing accounting estimates include fair value, accounting estimates, related disclosure. 540 के हिसाब से मेरे को अपना accounting estimates, fair value accounting, इन सब की disclosures को check करना पड़ेगा due to COVID इसमें क्या impacts आया है. जो accounting हुई है उसी की auditing करनी है हमारी. 560 subsequent events, again explained very nicely by Gopalji, so I'm not again subsequent events and my going concern. These two, along with my audit evidence and my 240, these all are what we are discussing today. All these standards on auditing, they become very important. Test the subsequent events. Going concern का impact आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है तो फिर उसके हिसाब से accounting करें. जैसे गोपाल जी ने कहा, going concern we have discussed. Written representation, yes. One may say that not taken, but yes, it has still got a very, very important role. I'm telling you. Merely written representation will not absolve you. However, your other audit evidence, your other audit documentation, along with written representations, will help you a lot. In case someone is holding you guilty of a neglect. So it is a must. It is a must. And now in this COVID period, whatever is the COVID impact, take it in writing. Either there is an impact, there is no impact, positive impact, negative impact. जैसे गोपाल जी ने कहा 65 बार एनुअल रिटर्न में एनुअल रिपोर्ट में लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, इसमें 4 बार 10 बार लिखा होगा तो कोई इशू नहीं है. आप जो अपनी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं कोविड से रिलेटेड और उसका इम्पैक्ट कह रहे हैं जी मेरा तो कोई नहीं आया. अब मैं एक ट्रेडर हूं या मैं एक कंसल्टेंट हूं, मेरे पास माल आता मैं बेच देता हूं, मेरा वो माल पेरिशेबल भी नहीं है. एक क्वेश्चन अभी जो आया है फ्रॉम गुरदीप कौर जगदेव जी से कि मेरा रेस्टोरेंट है, तो मेरा जितना भी रॉ मटेरियल था उसकी एक्सपायरी हो गई, खुला ही नहीं रेस्टोरेंट. तो यस, आपको 31 मार्च में उसकी NRV is 0 because that is not usable. You have to write it off. There is a loss. Give a note due to COVID, not opening. It has gone. Loss has to be booked. Don't be afraid of booking loss. If the debtors are not coming, you are not paying the liabilities. In fact, many are using this to clean off the balance sheets. Right? But again, have proper documentation, written representations, and then go ahead. ठीक है? अब यहाँ पर कंपोनेंट ऑडिटर्स हैं मेरे ब्रांचेस के या जिसके मैं कंसोलिडेशन कर रहा हूँ, वहाँ पे जो कंपोनेंट ऑडिटर्स मेरे जो ब्रांचेस के हैं वो ऐसे एरिया में है जो वहाँ पे ऑडिट करके नहीं दे पा रहे, तो उसका जो इफेक्ट आ रहा है, अगर वो अनऑडिटेड हैं तो मैं उसको अपने हिसाब से उसके अंदर डिस्क्लोज करूँ अपनी रिपोर्ट के अंदर, बिकॉज ब्रांचेस के कंपोनेंट ऑडिटर्स का
लोकेशन अगर सिविली अफेक्टेड है, उन्होंने ऑडिट करके नहीं दिया, तो लेट मी मेंशन कि दीज आर टेकन फ्रॉम द अनऑडिटेड ब्रांचेस। व्हाटएवर इज देयर काइंडली क्लियरली मेंशन। 700, 705, 706 बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गोपाल जी ने, तो मैं इसमें कुछ ज्यादा डिटेलिंग लूंगा। ऑडिटिंग और रिपोर्टिंग मैटर 701 उन्होंने बता दिया। 720 में सिर्फ मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, जो मेरा लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी का डिफरेंस है। One is in 701, second is in 720. When we were discussing on this technical guide on this guidance note on this 720, so it was under discussion. Private companies के केस में या अनलिस्टेड कंपनीज के केस में ये 720 होता क्या है? 720 ये कहता है बेसिकली कि आप जो अपने ऑडिट रिपोर्ट इशू कर रहे हैं, तो जो मेरा डायरेक्टर्स रिपोर्ट है, वो तो कहते हैं प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में भी एप्लीकेबल है, क्या पता कहीं पे कोई रिपोर्टिंग हो, सो सबके लिए एप्लीकेबल, बिकॉज ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इज फॉर 720 इज फॉर लिस्टेड एंड अनलिस्टेड एंटिटीज। तो अगर मान लीजिए आपकी अनलिस्टेड एंटिटी है और वो अनलिस्टेड एंटिटी के अंदर जो मेरी अदर इंफॉर्मेशन है, अदर इंफॉर्मेशन विच इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लाइक इन दिस केस आई विल से डायरेक्टर्स रिपोर्ट। अगर आपको डायरेक्टर्स रिपोर्ट का कोई भी पार्ट या कोई भी उससे रिलेटेड पार्ट आपको दिया है बिफोर इशू ऑफ योर ऑडिट रिपोर्ट, कोई भी पार्ट, देन यू हैव टू गिव अ पैराग्राफ फॉर द अदर इंफॉर्मेशन। लेकिन अगर कोई भी पार्ट नहीं दिया, तो आप डॉक्यूमेंट कीजिए, उनसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में लिखवाइए कि उन्होंने अदर इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिया। देन माय रोल does not include in my auditor's report, but still I have the role to verify the other information thereafter later, और उसमें कोई वेरिएशन होगा तो मैं दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस को बता दूंगा। तो हमारे नॉर्मली एसएमपीस के अंदर कौन पहले देता है? कोई नहीं देता। लेकिन अगर जहां देते हैं वहां रिपोर्टिंग है, जहां नहीं देते वहां पे आपको रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट में ये नहीं करना अनलिस्टेड एंटिटीज में। एक्सपर्ट्स पैनल सबको पता ही है, जो नए हैं एनीवन कैन ज्वाइन एंड इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 19,000 से ऊपर आंसर्स हो चुके हैं, 100 से ऊपर क्वेश्चंस हैं, 100 से ऊपर एक्सपर्ट्स आंसर कर रहे हैं, 6,000 से ऊपर क्वेश्चंस क्वेरीज हैं जो लोग बाग पूछते हैं। सो एनीवन कैन ज्वाइन, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन आंसर्स आपका इसके अंदर ये आर्टिकल्स भी है, प्रेजेंटेशंस भी है, वीडियोस हैं, नोटिफिकेशन, ये कैटेगरी वाइज सारा कुछ है। यहाँ से आप साइन अप करके लॉग इन कर सकते हैं। तो एनीवन कैन यूज दिस, राइट। और ये प्रेजेंटेशन यहाँ पे दोनों साइट्स के ऊपर मैं अपलोड कर दूंगा। एक ये मोबाइल ऐप है, कोई भी यूज कर सकता है, डाउनलोड करें। जितने भी रेडी टू यूज चार्ट्स भी इसके अंदर है, 2007 से किससे टैक्स फ्री गिफ्ट ले सकते हैं, एनीवन कैन यूज इट। थैंक यू। नाउ क्वेश्चंस वी कैन टेक। थैंक यू प्रमोद जी, थैंक यू सर। सर प्रमोद जी कुछ क्वेश्चन आंसर आए हुए हैं, वो ले लेंगे प्लीज, Q&A में है। बिल्कुल सर। हाँ जी, ऐसे डाल देना प्लीज, कम तो मारो। हाँ जी। पहला क्वेश्चन जो है लवसीमा शर्मा का, गोपाल जी आप इसका आंसर दीजिएगा, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। इफ द डेटर इज कंफर्मिंग द बैलेंस शीट but is not in a condition to repay till the date of signing balance sheet, because all businesses are somehow getting affected by the COVID, so what we should do in the books of account? So sir, as per AS 29, we have to make the provision for it if they are not paying. Merely confirmation of the debtors is not sufficient. If till the date of auditor's report, we are not getting the sufficient and appropriate audit evidences that they are eligible, then of course we will have to convince the management to make the provision for it. हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं गोपाल जी कि अगर मेरा डेटर्स का इम्पेयरमेंट है, उन्होंने कंफर्मेशन दे दिया कि हाँ मैंने देना है, लेकिन मेरे को पता है मैनेजमेंट कहता है इससे आना नहीं है, तो मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, राइट। सेकंड क्वेश्चन इज again this is from Gurdeep Kaur Jagdev ji. There is how to treat the expiry of food raw material in financial statement due to COVID, as restaurants are not operational up to the full due to COVID. हाँ जी गोपाल जी।
सर हाँ, तो ये तो एनआरबी की बेस पे चला जाएगा. नेट रिलीज वैल्यू अगर उसकी नहीं है तो इट शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी. अगर इफ देयर इज नो एनआरबी और द सैल्वेज वैल्यू इज देयर, इट हैज टू बी वैल्यूड अकॉर्डिंग टू AS2 और IND-AS1 IND-AS2 आल्सो. जो भी है उसके हिसाब से. इन दिस केस ऑफ कोर्स जैसे हमने कहा था कि उसकी सारी एक्सपायर्ड हो गई है, वो नॉन यूजेबल है, उसकी नेट रिलाइजेबल वैल्यू 0 है, इट कैन नॉट बी यूज्ड इनटू माय बिजनेस. सो 31 मार्च में नील है तो नील है, यू कैन नॉट डू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अवर अमित खोसला जी. मेरे ख्याल से अमित खोसला जी के तो तीनों क्वेश्चन उन्हीं के हैं सर. If the debtor is having an outstanding of 125 lakhs and he is under NCLT and the NCLT while accepting claims has rejected 40 lakhs of the claim, our client wants to make a provision for bad debts of 40 lakhs and show 85 lakhs under doubtful assets without making a provision. What is your opinion? Do we need to provide in the comments in our report? So we will have to make the basically provision based on the management judgment, and if they themselves are saying that these are doubtful, either they should say that these are considered good as far as 100 lakh or balance amount is concerned. If they themselves are admitting it that these are doubtful receivables, so they will have to make the provision for it. If they are not making the provision, of course we will have to make qualify our opinion in this regard. गोपाल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं. अमित जी, इस केस में क्या है कि मेरा 40 लाख तो एनसीएलटी, मेरा कंपनी एनसीएलटी में तो मेरा रिजेक्ट हो गया, तो 40 लाख तो मेरे को राइट ऑफ करना ही पड़ेगा. और बाकी का 85 लाख आई हैव टू मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. और अगर नेक्स्ट ईयर तक तो क्लियर हो ही जाएगा, और वो नहीं आया तो फिर, और जितना उसमें से आया उतना ठीक है, बाकी आपको फिर राइट ऑफ करना. जी सर. Since the lease terms for the warehouses are under negotiation with the landlord, while applying Ind AS 116, since the unexpired period holds key for calculations, how do we go ahead with the calculations if the company is doing as per old terms, since new terms are not finalized? Should this form part of EOM? No, it would not be basically if the revised terms are not there, so we cannot take the advantage of the revised terms basically. And if we cannot account for as per the revised terms, then there is no need of any further EOM and like that. We will account for the lease according to the lease terms which are already there. So when it is finalized only then? On the basis of expectations, we cannot capture the basically adjustments. Okay, good. So there would be no EOM in this case, right? Yes. Next question from Amit Khosla ji. In cases where we are carrying out audits distantly, since they have to do because they are closed, in our report, what kind of concern should be reported in our independent audit report and where? So in this respect, very categorically, bank branch auditors have witnessed all these things and they have conducted the audit remotely. And whatever the limitations are there, we are not getting the direct audit evidences, you can say. We are basically collecting the alternate audit procedures, and they are putting the limitations also. And to my mind, frankly speaking, under such situations, the opinion should be qualified in this regard. Here, Gopal ji, I will have a different view, because it would vary from case to case. Now suppose आज मैं एक कंपनी का ऑडिट कर रहा हूँ, या पार्टनरशिप का कर रहा हूँ, या प्रोप्राइटरशिप का कर रहा हूँ. अब जब मैं उसका ऑडिट कर रहा हूँ तो उसने क्या किया, मेरे को सारा अपना डाटा दे दिया. मैंने जो लेजर मांगा मेरे को दे दिया. मैंने कहा मेरे को ये 25 इनवॉइसेस चाहिए, उसने मेरे को स्कैन करके कॉपी दे दी. उसने कहा जो चीज चाहिए मेरे को ऑनलाइन ले लो. मैं पर्सनली वहां फिजिकली नहीं गया. तो merely कि मैं पर्सनली वहां फिजिकली जाऊं, that will not be a case for my qualification or any other matter. So I have to very care what I sought, because मेरा report कहता है that I have sought and obtained the information. Whatever I had sought, did I get or not? Or what I sought and which I did not get, was that material? That is true. So that's why, sir, we were just sharing that in bank branch audit we also specified under scope limitations. Basically, scope limitations are there because we cannot verify the cash and so many other things.
in normal course also, in the we are required to verify the cash, we are required to verify the PP and all that, but we could not do it. So there is a scope limitation, and we can bring all these things through OMP paragraph once we are convinced that our financial statements are not misstated. Yes. So now again, Amit bhai, अगर मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ऑडिट के अप्रोप्रिएट एविडेंस, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस के कलेक्ट करने में कोई इशू नहीं आ रहा, तो जरूरी नहीं है कि मैंने कुछ डालना है, कि कोविड है तो मैं डालूं ही कुछ ना कुछ जरूर। प्लीज अंडरस्टैंड, मैं वहां पे, मैं मान लीजिए मैं इन्वेंट्री फिजिकली वेरीफाई नहीं कर पाया, मेरा एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं हुआ। हाँ, एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं हुआ तो उसको आप रिपोर्ट करेंगे, इट कुड बी योर एम्फेसिस मैटर आउट हियर, बट क्या उसकी वजह से आपका वो ट्रू एंड फेयर नहीं रहेगा, या वो परवेसिव है, या वो क्वालिफिकेशन बनेगा, जो आज गोपाल जी ने बहुत डिटेल्ड में हाउ व्हेन इट इज टू बी क्वालिफाइड, व्हेन नॉट, उसके हिसाब से अपने होगा। ठीक है, केस टू केस वेरी करेगा। हम देखेंगे जो हमारे छोटे छोटे क्लाइंट्स हैं वहां पर कहीं कोई इशू नॉर्मली नहीं आएगा। यस सर, छोटे छोटे क्लाइंटों में इशू नहीं आएगा जो कि हमारे ऑफिस में आके ऑडिट करवाते हैं सर। यहाँ पे हमारा जो फैक्ट है सर, क्योंकि सारे हम एसएफपीस है, यू नो, सो वी आर टॉकिंग वेरी ओपनली आउट, ये अपना बड़ा क्लोज डिस्कशन है, राइट। गुरदीप जी का है, शुड इट बी पुट एज लॉस इन सेपरेट लाइन आइटम एज कोविड लॉस, जो मेरा ये रॉ मटेरियल का किचन का है, जो किचन का मेरा रॉ मटेरियल एक्सपायर हो गया तो सेपरेट लाइन आइटम डालूंगा मैं। नहीं, इन्वेंट्री में ऐसा कुछ नहीं, अगर कोई बहुत मेजर अमाउंट है, मटेरियल अमाउंट है, तो आप उसको डिस्क्लोज कर सकते हो, बट अदरवाइज इन्वेंट्री राइट डाउन का कोई अलग से स्पेसिफिक ऐसा डिस्क्लोजर नहीं है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको इन्वेंट्री अपनी कम करनी है, क्योंकि इन्वेंट्री आपने फेंक नहीं है तो उसको आपको स्क्रैप का भी कुछ नहीं मिलना, तो आपने सिर्फ इन्वेंट्री कम करनी है अपनी। बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई एंट्री नहीं होनी है, इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो जाए। मेरे ख्याल से यही दो इनके क्वेश्चंस थे। हाँ जी, ओवर टू प्रवीण जी एंड राकेश जी। Thank you, sir. Thank you, Pramod ji, Gopal ji, sir, for such a nice and detailed deliberations on the today topic, and enlighten us on how to handle your audits and how to prepare your reports during this COVID-19. Thanks to all, sir, and thanks to all the participants for joining this meeting, and thanks to Vineet Singhal and his team for providing us a technical supports during this meeting. Thank you, sir. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच गोपाल जी, थैंक यू सबको, बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। Stay healthy, stay safe, stay positive. थैंक यू राकेश जी, Thank you, sir. थैंक यू सर, थैंक यू प्रवीण जी, थैंक यू। Thank you, sir. Yeah.